सुधरा मैया की जय। गौर निताई की जय। लीला प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So we are reading from Srimad Bhagavatam, third canto, 25th chapter, 25th shloka. So that is the one we'll recite and then we'll discuss the whole thing. Satam prasangan mama veer samvido भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। प्रभु ततां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादस्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादस्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। गुड गुड। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो
भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादस्त्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। माताजी सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादश्वपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादश्वपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। विनीता पद्मा माता जी। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादस्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and to the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagar Jatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaurakvishe Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we welcome everybody to yet another Sunday morning program. For Sunday morning, we are meeting after quite some time. Sunday morning हम लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं. Of course, पिछले Sunday भी program हुआ था, लेकिन many of us had gone to चन्नापटना यात्रा with the new batches, 2 new batches. कौन कौन गए थे चन्नापटना यात्रा? Okay. And others, hopefully they were here attending the class here as well. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संडे मॉर्निंग को राधा माधव के चरणों में आने के लिए। एंड एक चीज गारंटीड है, कोई और अटेंडेंस ले ना ले, भगवान अटेंडेंस ले रहे होते हैं। हाँ? एक बार हम लोग किसी यात्रा में गए थे, वहां दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी, कुछ डिवोटीज दर्शन नहीं ले पाए, वो मंदिर के आसपास ही घूमते रह गए, वो दर्शन ले ही नहीं पाए। तो दे वर फीलिंग वेरी सैड, अरे दर्शन नहीं ले पाए। तो अवर सीनियर डिवोटीज हु हैड टेकन ऑन द यात्रा, दे वर टेलिंग डोंट वरी, कृष्णा हैज सीन यू, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हम जब दर्शन लेते हैं तो हम अपनी इन आंखों से क्या भगवान का दर्शन लेंगे? चर्म चक्षु से वी कैन नॉट टेक एनी दर्शन। बट देन व्हेन द फैक्ट दैट वी कम, द फैक्ट दैट हम कोशिश करके जाते हैं भगवान के पास, वो भगवान नोट कर ली। और वी शुड हैव फर्म फेथ इन दिस। ठीक है, सो टुडे वी हैव असेंबल्ड फॉर समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सेक्शंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। कपिल, बेसिकली देवहूति एंड करदम मुनि सेक्शन, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। ये बहुत बढ़िया सेक्शन है थर्ड कैंटो में। एंड हम में से कितने लोग we want to perfect our lives? Please say loudly Hari Bol. Ultimately we are all practicing Krishna consciousness so that we can evolve our consciousness gradually. शुरू में हमारी consciousness कैसे होती है? बहुत छोटी होती है, केवल I के बारे में सोचते हैं, we think only about I. उसके बाद थोड़ी और बड़ी होती है तो क्या सोचते हैं? My. पर फिर माई का सर्कल छोटा होता है, माई बॉडी पहला, फिर माई ब्रदर सिस्टर माई पेरेंट्स इमीडिएट सर्कल, फिर ओके माई एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, फिर माई और बड़ा होता है सर्कल, मे बी अवर ओन फैमिली, कास्ट, कम्युनिटी, वॉट, फिर और बड़ा होता है सर्कल, ओके अवर नियर बाई सोसाइटी, फिर और बड़ा होता है सर्कल तो कंट्री, फिर सर्कल और बड़ा होता है तो होल वर्ल्ड, फिर और बड़ा होता है तो इंटायर ह्यूमैनिटी, फिर और बड़ा होता है तो ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। सो लाइक दैट अवर कॉन्शियसनेस एक्सपैंड्स। वी आर इन अ जर्नी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है ना, इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो आधा सही है आधा गलत है, ऐसा नहीं पूरा गलत। एक इवोल्यूशन है, एक जर्नी है, वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, बट द जर्नी इज नॉट इवोल्यूशन ऑफ बॉडी, द जर्नी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इवोल्यूशन ऑफ बॉडी बोलना ऐसे गलत हो जाएगा, जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है क्लास 4 में, तो क्लास 4 का फाइनल एग्जाम देने के बाद कहाँ जाएगा? वो 5th में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जिस क्लासरूम में बैठा था, विच एवर क्लासरूम दिस पर्सन वाज सिटिंग, वो क्लासरूम जो है ट्रांसफॉर्म हो गया और 5 बन गया। नहीं, ये बच्चा 4 के क्लासरूम से निकल के 5th के क्लासरूम में चला गया। इवोल्यूशन हुआ है, बट ऑफ चेतना, ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज अ जर्नी। तो ऐसे करते 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 परफेक्शन क्या है ऑफ कॉन्शियसनेस का? कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की जाए, दैट इज अ परफेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस. So those of us who want to actually become perfectly Krishna conscious or who want to perfect our life, this section is very very important. इसमें इतने अच्छे अच्छे instructions, कपिल देव, कपिल देव बोलते हैं तो एक और याद आते हैं, पर ये दूसरे कपिल देव है. तो लॉर्ड, सो कपिल देव, हु इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ इज गिविंग वेरी नाइस इंस्ट्रक्शंस. जैसे कृष्णा और अर्जुन के बीच में भगवद गीता हुई थी, सिमिलरली दिस इज लाइक देवहूति एंड कपिल. देवहूति इज मदर ऑफ कपिल देव एंड कपिल इज इंस्ट्रक्टिंग एंड अमेजिंग इंस्ट्रक्शंस. और उस पे भी प्रभुपाद ने जो परपोर्ट लिखा है दिल खोल के, वेदर आई डोंट नो हाउ मच वी विल बी एबल टू कवर. बैठते मेरे को सबसे पहले घड़ी दिख जाती, आई डोंट नो हाउ मच वी विल बी एबल टू कवर, बट देन प्लीज टेक दिस एज अ पर्सनल होमवर्क कि whatever we are able to cover today or not cover today, please go back and please read that section. We'll tell all the chapter numbers and all that, but it is very very amazing. One of the best purports of Prabhupada, one of the best instructions of Krishna about this is what you should do, this is what you should not do. Simple do's and don'ts, एक लिस्ट है, एक फॉर्मूला है कि अगर अपने को अच्छा डिवोटी बनना है तो क्या करना है. That is what this section is about. So we'll come to this verse in between this section. तो थोड़ा पहले से शुरू करते हैं, थोड़ा पहले से शुरू करने से अच्छा रहता है. तो क्या हुआ, ये दोनों कौन है? विदुर और मैत्रेय. तो रिमेंबर थर्ड कैंटो में मेन क्या चल रहा होता है? विदुर और मैत्रेय का कन्वर्सेशन चल रहा होता है. सो दे हैव बीन डिस्कसिंग.
तो विदुर इंक्वायर्ड, तो बहुत सारी बातें पूछी. इफ यू रिमेंबर, वी हैव बीन डिस्कसिंग इन वेरियस भागवतम क्लासेस दैट मेनी थिंग्स विदुर इज आस्किंग मैत्रेय. ऐसे ही करते करते अराउंड चैप्टर 20-21 इसके आसपास विदुर इज आस्किंग मैत्रेय, अरे एक बात बताइए, ये पूरा यूनिवर्स में जो इतनी सारी प्रजा की उत्पत्ति की गई है, ब्रह्मा के आदेश पर, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रह्मा, दिस प्रोजेनी विच हैज बीन क्रिएटेड, स्वयंभुवा मनु वाज द फर्स्ट मनु. तो कैसे किया उन्होंने, कि हाउ डिड ही एक्चुअली हिज सन्स एंड डॉटर्स, दैट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ स्वयंभुवा मनु, कि हिज सन्स एंड डॉटर्स और ही हिमसेल्फ शुड एक्चुअली एक्सपैंड द पॉपुलेशन इन दिस इंटायर वर्ल्ड. ऐसा. तो विदुर इज आस्किंग मैत्रेय. तो देन एक्चुअली मैत्रेय इज देन टेलिंग फ्यू थिंग्स वन बाय वन, कि कैसे स्वयंभुवा मनु के 2 बेटे हैं, उत्तानपाद एंड प्रियव्रत, और 3 बेटियां हैं, 3 डॉटर्स, अकुति, प्रसूति एंड देवहूति. इनफैक्ट थर्ड कैंटो पूरा यही फैमिली के ऊपर है. दिस इज लाइक द मोस्ट सेलिब्रेटेड फैमिली ऑफ भागवतम, दिस होल फैमिली, लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट ऑन दिस फैमिली. इमेजिन सच अ ग्लोरियस फैमिली. होता है हमारे इस्कॉन में भी, वी सी समटाइम्स the whole family, many are devotees and many are serving very nicely in ISKCON, brothers, parents, everybody, so that's very nice. So then Maitreya, what he did, तो इनको चूज करना था 5 में से सबसे पहले किसको लेने का. तो सबसे पहले ही डिसाइडेड टू चूज देवहूति, इनकी एक डॉटर स्वयंभुवा मनु की. एंड देवहूति गॉट मैरिड टू करदम. So then now Maitreya Muni is zooming into that because that is a very very instructive episode. तो कपिल देव की teachings में आने से पहले first we want to quickly go over this, that Maitreya first described the descendants of Devahuti who was married to Kardam Muni. तो क्या हुआ, एक बार करदम मुनि, तो ऑफ कोर्स ब्रह्मा ने आदेश दिया था कि भाई जाओ तुम शादी करो और बच्चे पैदा करो, बहुत सारे, हजारों हजारों, ऐसा, तो करदम मुनि ऐसा नहीं सोचे, यस यस कम ऑन लेट्स गो, नॉट लाइक दैट. करदम मुनि वर्शिप लॉर्ड विष्णु by performing austerities for 10,000 years with a desire to get a suitable wife. सोचिए, जहां 2-3 बात देखने की है. पहली बात तो he first, for before any service, first we have to do tapasya, we have to pray, we have to do tapasya. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also, when he wanted to actually start and inaugurate the entire preaching movement, very very large scale, first he went to Mayapur for 8-9 whatever years and chanted whatever, I don't know how many, 3 lakhs or 64 rounds a day for 7 or 8 years, for 1 million, 1 billion names of Krishna. He said wo karunga, then he says that yes now I am ready, and then he comes out. वो पूरा 8-9-10 साल जो भी मायापुर में एक अम्ब्रेला, पानी भी बरस रहा है तो एक अम्ब्रेला के नीचे बैठे हैं और जप कर रहे हैं, केवल थोड़ा बटर मिल्क, थोड़ा कुछ ऐसे, वो भी आई हर्ड फ्रॉम सम इन सम लेक्चर्स, हाथ ऐसा पीछे बांध लेते थे और ऐसे करके जितना आ गया बस उतना खा लिए. That austerity, why? To get the spiritual strength. They are teaching us by example. How do we get spiritual strength? By austerity. Point to be noted, my lord. We get spiritual strength by austerity, by tapasya. और सेंस ग्रेटिफिकेशन करके क्या होता है, लीक हो जाता है, बल लीक हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं. एवरी टाइम वी डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, माय स्पिरिचुअल मास्टर सेज, एवरी टाइम वी कॉम्प्रोमाइज वी रिमेन अ नियोफाइट. ये बड़ा झटके वाली लाइन है. सी ऑल ऑफ अस वांट टू मेक एडवांसमेंट, थोड़ी हम छोटे बच्चे रहना चाहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में. ऑल ऑफ अस वांट टू मेक एडवांसमेंट, लेकिन एवरी टाइम वी कॉम्प्रोमाइज अ प्रिंसिपल. इट कुड बी 4 डूज, इट कुड बी 4 डोंट्स, इट कुड बी एनीथिंग. जो भी हम व्हाटएवर वी आर कन्विंस्ड अबाउट, व्हाटएवर डूज एंड डोंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, उसमें एवरी टाइम वी कॉम्प्रोमाइज द प्रिंसिपल, वी रिमेन अ नियोफाइट. कब तक कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, कभी तो होगा नहीं, अब ये है, नाउ आई नेवर ब्रेक दिस प्रिंसिपल, समथिंग लाइक दैट. नो, तो पहला ये है कि ही वेंट एंड डिड ऑस्टेरिटी फॉर 10,000 years. एंड देन सोचो ऑस्टेरिटी क्या चीज के कर रहे हैं, टू गेट अ वाइफ. सो वन थिंग टू बी नोटेड अगेन, it is not bad to get married. Married is not bad, marriage is not bad, grahasth ashram is not bad. It is an authorized system by Krishna. In fact, great saints, they are doing 10,000 years of tapasya to get married. But this training is important before marriage, so that they know who to get married to, and so that they prepare themselves for marriage. So with a desire to get suitable wife, not for sense gratification, but to fulfill instruction of Lord Brahma to create progeny. मतलब विवाह भी सेवा है. In fact, the union of husband and wife to create children is also religion, is not against religion, if it is done properly. तो उनकी सोच क्या थी, what he was thinking, कि ठीक है, when we will have some children, then I will again go and exclusively focus on Krishna. So his plan was very clear. Not that he did not know goal of life क्या है and he is getting distracted or deviated. No, goal of life is very clear. The goal can be out of reach, but it should never be out of sight. Another point to be noted. चाहे हम कुछ भी कर रहे हो लाइफ में,
लक्ष्य जो है उस पर नजर कभी हटनी नहीं चाहिए उससे। उसके लिए हम लोग डेली रीडिंग हियरिंग चैंटिंग करते हैं। why we are doing nityam bhagavad sevaya, we began with those prayers, right? Why we have to do nityam bhagavad sevaya? Not to get more and more knowledge, not to become more and more jnani, but to actually always remember, oh, I am not the body, I am soul. Oh, goal of life is to please Krishna. Oh, today what am I doing to please Krishna? Okay, let me see. Whatever. तो ये remember करना, ये स्मरण करना बहुत important है। ठीक है, तो हुआ 10,000 साल तपस्या की उन्होंने, फिर कौन आ गए? विष्णु आ गए। साक्षात विष्णु ने उनको दर्शन दिए। विष्णु अपीयर्ड एंड टोल्ड अबाउट स्वयंभुवा मनु हु विल कम डे आफ्टर टुमारो एंड ऑफर हिज डॉटर देवहूति टू हिम। तो जब विष्णु दर्शन दिए करदम मुनि को, बोला चिंता मत करो, तुम जैसी एग्जैक्टली जैसी वाइफ तुमको चाहिए वैसे ही स्वयंभुवा मनु अभी परसों ही लेकर आएंगे। ही सेज लाइक दैट, डे आफ्टर टुमारो स्वयंभुवा मनु हिमसेल्फ आएंगे अपनी डॉटर को लेकर और उनका हाथ आपको देंगे, लाइक दैट ही इज टेलिंग। एंड ही आल्सो सेज शी विल एग्जैक्टली बी द काइंड ऑफ वाइफ यू वांट। सबसे बड़ा टेंशन होता है वाइफ के लिए बॉयज, गर्ल्स के लिए बॉयज को लेकर, बॉयज के लिए गर्ल्स को लेकर। एंड देन ही सेज, ही हिमसेल्फ इज टेलिंग, यू विल beget 9 daughters and 1 son, and that 1 son will be me। बताओ क्या लेवल है इन लोग का। भगवान आके बोल रहे हैं अभी तुम्हारी शादी इससे होगी। मैरिज बोर्ड की कोई जरूरत नहीं, कृष्णा इज द matchmaker, and then he's telling, I will take birth as your son। just imagine what kind of people they are। किसकी बात कर रहे हैं भागवतम में? हाँ? क्या है भागवतम? आई मीन ऐसा कोई शास्त्र ही नहीं है जहां ये सब बातें हो रही है, और सब कुछ जा रहा है किधर? प्योर डिवोशनल सर्विस। क्या ग्रंथ है! कैन यू, आई मीन, आर वी ऑल enjoying this bhagavatam? Bhagavatam is such an amazing thing, huh? Such an amazing thing। if we understand the goal of life, this is the book which is all about goal of life। इसमें और कुछ है ही नहीं, कोई मिलावट नहीं है, प्योर एकदम नेक्टर है, प्योर नेक्टर, कैंडी, पूरा मीठा हर तरफ से, प्योर, कोई मिलावट नहीं। तो ये क्या, वो जो ऊपर में दिख रहा है छोटा सा, वो बेसिकली स्वयंभुवा मनु है अपनी वाइफ शत्रुपा और अपनी बेटी देवहूति के साथ। बेटी शायद उसके आई में तो है, आई एम नॉट श्योर, पर एनीवे दे केम एंड आई थिंक दे ब्रॉट देवहूति आल्सो, एंड देन स्वयंभुवा मनु केम विद हिज वाइफ शत्रुपा। अब देखिए क्या हुआ, अनदर पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे ही करदम मुनि ने स्वयंभुवा मनु को देखा, स्वयंभुवा मनु कौन है? राजा है, इज द किंग इनफैक्ट ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। जैसे ही देखा, राजा लोग को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। दिस इज वैष्णव कल्चर। व्हेन टू वैष्णवास मीट, दे ग्लोरीफाई ईच अदर। बेकार का नहीं, खाली बोलने के लिए नहीं, सच में दे आर एक्चुअली जेन्युइनली फीलिंग ग्रेटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। दैट इज वैष्णव कल्चर। तो जैसे ही करदम मुनि ने स्वयंभुवा मनु को देखा, पूरी राजा लोग को ही ग्लोरीफाई किया, बोला कि यू आर एम्बॉडीइंग द प्रोटेक्टिव एनर्जी ऑफ लॉर्ड हरि। क्योंकि राजा कौन होता है? भगवान हरि का रिप्रेजेंटेटिव होता है, टू प्रोटेक्ट द होल सिविलाइजेशन, टू प्रोटेक्ट ऑल प्रजा। और स्वयंभुवा मनु ने क्या किया? ऐसा नहीं बोला यस थैंक यू, ऐसा नहीं किया, वो उनको वापस ग्लोरीफाई किया उन्होंने। दैट इज वैष्णव कल्चर। सो एज वी गेट ट्रेन्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मोर एंड मोर, वी शुड पिक अप दीज थिंग्स, that when a new Vaishnav comes in our community, what do? Like for example, today we have our Ravi Prabhu also here। All of us remember Ravi Prabhu। देखिए रवि प्रभु को सब पीछे। हमारे साथ वृंदावन यात्रा आए थे, पटना में रहते हैं पर वो बीच बीच में कुछ महीना बैंगलोर में रहते हैं। तो उसके बाद आई थिंक आफ्टर वृंदावन यात्रा रवि प्रभु अभी आप आ रहे हैं ना, क्या बीच में एक बार आए थे। सिमिलरली रिमेम्बर गिरीश प्रभु, हाथ खड़ा करिए, गिरीश प्रभु किधर है आप? हरि बोल, गिरीश प्रभु इज हियर नो। एनीवे, तो स्वयंभुवा मनु ग्लोरिफाइड ब्राह्मणास। देखो उन्होंने राजा लोग को ग्लोरीफाई किया, अब स्वयंभुवा मनु क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर प्रिजर्विंग वैदिक नॉलेज बाय प्रोपेगेटिंग इट। बताइए आप नॉलेज को कैसे प्रिजर्व कर सकते हो? ऐसा लेके बैग के अंदर, तिजोरी के अंदर रख के ताला लगा के नहीं, तो कैसे? प्रोपगेट करके। दैट इज द वे बाय विच नॉलेज इज प्रिजर्व। सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच मंथ इज दिस? Book marathon, right? And all of us, what are we trying to do? We are trying to preserve this knowledge, this most amazing contribution of Srila Prabhupada, by distributing his books. That's the way to preserve it. That's the way to preserve it. If we don't do it, we'll not be able to preserve। फिर स्वयंभुवा मनु ने बोला कि देखो ये मेरी बेटी है, मैं चाहता हूं आप इनसे शादी कर लो, और ये मेरी बेटी को छोटा मोटा मत समझना। शी इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, एंड बहुत ग्लोरीफाई किया अपनी बेटी को स्वयंभुवा मनु ने। एंड देन ही सेड कि एक्चुअली अगर आपके पास इतना अच्छा ऑफर आ रहा है तो आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा ऐसा भी बोल रहे हैं स्वयंभुवा मनु पहले से ही। एंड देन करदम मुनि इज टेलिंग, अरे हाँ सर, हु कैन रिजेक्ट सच एन अमेजिंग प्रपोजल? करदम मुनि इज सेइंग, एंड देन करदम मुनि इज रिमेंबरिंग कि अरे एक बार आई नो
कि एक गंधर्व था विश्वावसु करके। विश्वावसु अपना एरोप्लेन में उड़ रहा था ऊपर गंधर्व, और ये देवहूति जो है ना अपने घर की छत पर टेरेस पे बॉल से खेल रही थी। इसकी सुंदरता देख के वो विश्वावसु इतना पागल हो गया, प्लेन से गिर गया नीचे। दैट इज मेंशन इन भागवतम। Gandhar Vishwasu, so Kardama is saying, I know. Once Gandhar Vishwasu once fell from his airplane looking at her beauty while she was playing with the ball on the terrace. But then Kardama Muni said, I'll certainly accept her, but I have one condition. क्या कंडीशन डाला उन्होंने? उन्होंने ये कंडीशन डाला कि once we'll have children and once I'm done with my responsibilities, I will go and focus on my original goal. Very clear. And Swayambhuva Manu also said, yes, wonderful. I mean, this is what we all want. अब इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन आता है भागवतम में, विच इज अमेजिंग फॉर गृहस्थास। व्हाई अमेजिंग? क्योंकि बड़ा मजेदार सेक्शन है। बता रहा है कि अरे गृहस्थास आराम से एंजॉय कर सकते हैं पूरा होलसेल, नो प्रॉब्लम। बट वो है, दिख रहा है क्या सबको? ये मैं रीड करता हूं एनीवे। तो मैं क्या बता रहा हूं, अभी ये सब हो गया, अब मैरिज की बात शुरू हो गई, मैरिज भी हो गया। अभी मैरिज होने के बाद अब स्वयंभुवा मनु अपने किंगडम वापस लौट रहे हैं। भरिष्मति, भरिष्मति है उनके किंगडम का नाम, भरिष्मति लौट रहे हैं। तो जब लौट रहे हैं ना, तो वहां पर इन सम वर्सेस दे आर टॉकिंग अबाउट स्वयंभुवा मनु एंड हिज ग्लोरीज। तो क्या बोल रहे हैं? हैविंग एंटर्ड द सिटी ऑफ भरिष्मति इन विच ही हैड प्रीवियसली लिव्ड, मनु एंटर्ड हिज पैलेस which was filled with an atmosphere that eradicated the three miseries of material existence. मनु अपने घर लौट रहे हैं जो कि महल है, पर वो महल में एटमॉस्फेयर क्या है? चारों तरफ ऐसा एटमॉस्फेयर है जिससे जो त्रिविध ताप होते हैं, the miseries of material existence are eradicated. मतलब कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर, सीधी सी बात, because when will the miseries of material existence be not there? Only when you are Krishna conscious. Otherwise you will be affected by this world. But if you are Krishna conscious, it's like that Suraksha Chakra. वो बचपन में कोलगेट का ऐड आता था ना, तो बगल वाला बच्चा छींक रहा है पर इसको जर्म्स नहीं जा रहा है, सुरक्षा चक्र। Similarly, when we roam around in this world, what is our Suraksha Chakra? Krishna consciousness. Prabhupada writes in one purport, I think immunity of Krishna consciousness or vaccination of Krishna consciousness or sterilization of Krishna, ऐसा कुछ तो प्रभुपाद कहीं purport में लिख रहे हैं। और it is an antiseptic. Krishna consciousness is an antiseptic. Somewhere in some purport Prabhupada writes this. अगर आप सर्च करोगे वेदा वैष्णव तो मिलेगा। Just imagine Prabhupada purports. And it is actually like that. It is an antiseptic. तो ये एंटीसेप्टिक से पूरा भरा हुआ था पैलेस इनका। और देखिए क्या हो रहा था पैलेस में। एम्पर, तो इसलिए हम सब गृहस्थों का भी कर्तव्य है, किसी का भी मंदिर में, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो, कर्तव्य है कि एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस। एम्परर स्वयंभुवा मनु एंजॉयड लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ? अभी इतना क्या डरने का? हाउ मेनी यू वांट टू एंजॉय लाइफ? वी वांट टू एंजॉय लाइफ, बट एंजॉय विद कृष्णा। कृष्ण, स्पिरिचुअलिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अबाउट अरे रो रहे हैं, परेशान है, टेंशन में है, कल मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज एंजॉयमेंट, रियल एंजॉयमेंट, केवल आनंद कंड। परम करुणा बहुदुई जन, निताई गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंडा। So please don't have wrong conceptions about spirituality. So how many of you want to enjoy life? So Emperor Swambhuva Manu enjoyed life with his wife and subjects and fulfilled his desires without being disturbed by unwanted principles contrary to the process of religion. ये एक कैच है, ये स्टार मार्क है, कंडीशनल सप्लाई, दैट वी हैव टू एंजॉय बट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, और काम हैज टू बी regulated by dharma. That is what is being said here. Celestial musicians and their wives sang in chorus about the pure reputation of the emperor, and early in the morning, every day, he used to listen to the pastimes of the supreme personality of Godhead with a loving heart. ये देखिए क्या है भागवत। These are shlokas directly I am saying. I am not even saying purport. Directly shlokas. Every day early in the morning, he would hear Krishna Katha. He would hear the glories and the pastimes of the Lord. तो हम तो ऐसा राजा लोग नहीं कि हमारे आगे से बहुत सारे म्यूजिशियंस वगैरह आएंगे और करेंगे, पर आप वो अपना जो सुमेश सीधा प्रभु हरिणी माता जी ने जो दिया था वैकुंठ वाणी, वो हम चला सकते हैं सुबह। करेक्ट। Thus Swambhuva Manu was a saintly king.
यू कैन बी अ सेंटली एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। किंग बनने का कोशिश पता नहीं कर पाएंगे, नहीं बन, लेकिन कुछ तो सेंटली एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। 10 अवधूत निमाई प्रभु वाज अ सेंटली एम्प्लॉय ऑफ फ्लिपकार्ट। क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ऑल्दो एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियल हैप्पीनेस, यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं कि उसमें घुसे हुए, कहने का मतलब सराउंडेड बाय मटेरियल हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट it is meant. Although absorbed in material happiness, he was not dragged to the lowest grade of life, for he always enjoyed his material happiness in a Krishna conscious atmosphere. बताइए, इतना बढ़िया फॉर्मूला दे दिया। ये भी नहीं बोला मत एंजॉय करो, एंजॉयमेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोला भागवत में। बोला एंजॉय इन अ कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर। सब बोलिए हरि बोल। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एंजॉय इन अ कृष्णा के कॉन्शियस एटमॉस्फेयर? लाउडली। दैट्स व्हाट स्वयंभू मनु डिड। कंसिक्वेंटली तो हुआ क्या ऐसा करके? इसलिए प्रभुपाद एक परपोर्ट में लिखते हैं, रियल सक्सेस मीन्स टू बी हैप्पी इन दिस लाइफ एंड टू बी हैप्पी इन द नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि ये लाइफ बर्बाद कर लिया ये सोच के कि अगली लाइफ में अच्छा होगा। इतना तपस्या कर रहे, इतना मतलब तपस्या करना है, पर कहने का मतलब कृष्णा, रियल कृष्णा, रिमेंबर दैट पास्ट स्टोरी ऑफ वन गुरु एंड डिसाइपल, पता है कि नहीं? दैट गुरु और डिसाइपल का पास्ट टाइम, जहां पे वो गुरु और डिसाइपल जाते हैं एक राज में, और सबसे पहले एक प्रिंस को मिलते हैं, राजकुमार को। और राजकुमार, गुरु लोग जब, साधु लोग, गुरु लोग जब कहीं जाते हैं तो आशीर्वाद देते हैं ना, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। तो दिस गुरु व्हेन ही वेंट एंड मेट अ प्रिंस ऑफ दैट किंगडम, ही सेड कि तुम जीते रहो। डिसाइपल बोला वाह बढ़िया है, हमारे गुरु कितने अच्छे। नॉर्मली यही लोग आशीर्वाद देते ना, जुग जुग जियो या चिरंजीवी भवा, वट एवर, ऐसा। तो बोला तुम जीते रहो, ऐसा बोला। ठीक है, डिसाइपल बड़ा खुश, बोले मेरे अच्छे, बड़े अच्छे गुरु है। थोड़ी देर आगे गए, आगे गए तो पता है कौन मिला? एक वो मिला जो बहुत ही तपस्या कर रहा था, एक योगी जैसा, साधु जैसा कोई मिला जो बहुत ही तपस्या कर रहा था और पूरा हार्डशिप्स का जीवन जी रहा था फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो उसको जब गुरु ने मिला तो गुरु ने पता क्या आशीर्वाद दिया? तुम मर जाओ। अभी डिसाइपल चकराना चालू। जो डिसाइपल था वो कंफ्यूज हो गया, बोला अरे माय गुरु कैन गिव दिस ब्लेसिंग आल्सो, कि तुम मर जाओ। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक फ्यूज उड़ा उसका। थोड़ा और आगे गया, थोड़ा आगे गया तो एक बुचर मिला, बुचर कसाई, खच खच करके मार रहा है बकरी को, इसको इसको। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो नॉनवेज खाते हैं। हम बोले अच्छा आप कहाँ से लेके खाते हैं? बोलता है सुपर मार्केट से। मैं बोला जरा जहां बनता है ना वहां जाके देख के खाइए, फिर मेरे को बताइए आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे। कितना वायलेंस, कितना हिंसा है। एनीवे, द वर्ल्ड इज अबाउट कवरिंग द रियलिटी, दैट इज द वर्ल्ड। रामायण में जब रावण के बहुत सारे सैनिक सैनिक मर रहे थे, पता है रावण क्या करता था? सारी जो डेड बॉडीज थी ना उनको पानी में फेंक देता था, जिससे कि लोग नहीं देखे कि हमारे इतने मर रहे हैं और उनका मोरल डाउन नहीं हो। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज डिमोनियक मेंटेलिटी। टू कवर अप द रियलिटी इज डिमोनियक मेंटेलिटी, टू फेस द रियलिटी इज अ डिवोटी मेंटेलिटी। रामायण में कैसे चला गया? तो कवर अप किधर से आया? हाँ हाँ हाँ, तो मटेरियल सिविलाइजेशन और कवरिंग अप, एकदम खराब चीज है, और उसको ऐसा शोकेस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो लोग, जो अच्छे लोग भी, इनोसेंट लोग भी, दे आर आल्सो नॉट रियलाइजिंग व्हाट इज एक्चुअली बिहाइंड इट, बिहाइंड द कर्टन्स। एनीवे, कमिंग बैक, तो जब बुचर के पास गया, पता है बुचर को क्या आशीर्वाद दिया? बोला तुम न जियो न मरो, जीवो वा मरो वा। हम्म? अब डिसाइबल का दूसरा फ्यूज भी उड़ गया। बोला ये क्या है, अजीब गुरु है हमारा। फिर ऐसे करते करते एक इस्कॉन डिवोटी के पास गया। इस्कॉन मैंने ऐड कर दिया है, कहने का मतलब एक भगवान के भक्त के पास गया। और भगवान के भक्त के पास गया और गुरु ने बोला तुम चाहे जियो चाहे मरो, डजेंट मैटर। अब तक तो इसके जितने 4 फ्यूज थे, चारों फ्यूज, पहला फ्यूज तो नहीं उड़ा था, बाकी तीनों फ्यूज इसके उड़ गया। डिसाइबल बोला गुरु जी एक मिनट, आगे कहीं जाने से पहले प्लीज रुकिए, प्लीज एक्सप्लेन। फिर गुरु ने एक्सप्लेन किया, देखो वो जो राजकुमार था, अभी क्या है, पूरा ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, देखने में ऐसा उसको अभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपके पास पैसा होता है, वेल्थ होता है, डब्ल्यू 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 बोलिए, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वेल्थ वाइन वुमेन, ये सब एक साथ ही आता है। हाँ, तो सारे पाप करेगा वो राजकुमार। तो अभी तो मजा कर रहा है एकदम होलसेल, जैसे ही मरेगा उसके बाद क्या होगा? हेल इज वेटिंग फॉर हिम। तो गुरु ने क्या आशीर्वाद दिया? तुम जीते रहो, मरो मत, मारे तो गए तुम, गॉन। तो उसको बोला मत जीते रहो। तो डिसाइबल, ओ इतना तो सोचा ही नहीं था मैंने। तो गुरु ने बोला अच्छा अगला। तो गुरु ने बताया अगला, पता है क्या था? क्या था अगला? हुआ द नेक्स्ट वन। हाँ, योगी जो बहुत तपस्या कर रहा था, हार्डशिप्स कर रहा था फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन नेक्स्ट लाइफ। तो गुरु ने उसको क्या बोला? तुम मर जा, क्योंकि अभी क्या अननेसेसरी टॉर्चर का जीवन जी रहा है,
मर जाएगा तो ही हैज अ हायर डेस्टिनेशन वेटिंग फॉर हिम, करेक्ट? गुड डिसाइपल, अरे इंटेलिजेंट गुरु, गुड, थैंक यू थैंक यू। फिर उसके बाद थर्ड के पास गया, बोला अच्छा, तो बोला थर्ड कौन था? वो थर्ड बुचर। वो अभी क्या कर रहा है? हेल का जीवन जी रहा है। सोचो, मार रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग, ब्लड निकल रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स कम, आई मीन वी कैन इमेजिन। आई वंस हैपेंड टू सी, क्या बाप रे, वो एक विद द फायर वाला टॉर्च, वेल्डिंग वाला टॉर्च होता है ना, फायर वाला, उससे वो बकरी का पूरा बाल जला रहे थे पहले। कैन यू इमेजिन? तो बोला उसका अभी का लाइफ क्या है? हेल। और मरने के बाद क्या होने वाला है? हेल। तो यू नीदर डाई नॉर लिव, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। फिर फोर्थ कौन था? इस्कॉन डिवोटी, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डिवोटी। गुरु ने क्या बोला? तुम जियो मरो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर इन वैकुंठा ऑलरेडी। That's what Prabhupada writes in one more purport. Real success means to be happy in this life and to be happy in the next. That's what we are seeing in Swayambhuva's Manu example. Consequently, although his duration of life gradually came to an end, his long life, स्वयंभुव मनु का लाइफ हम लोग के जितना नहीं था, एक मनवंतर, पूरा मनु है ना, एक मनवंतर तक रहेंगे, मतलब एक मनवंतर मतलब कितना? 72 दिव्युगास। At the end of his long life, consisting of one Manvantara era, was not spent in vain, since he ever engaged in hearing, contemplating, writing down, and chanting the pastimes of the Lord. Always. कितना बढ़िया सीक्रेट है ना? He passed his time, which lasted 71 cycles of the four ages, always thinking of Vasudev, always thinking of Vasudev, and always engaged in matters regarding Vasudev. Thus, he transcended the three destinations. मतलब सीधे spiritual world, kingdom of God. है ना amazing? These verses, note this down as homework. Prabhupada के purports are really amazing here. 3.22.32 to 36. हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज का टॉपिक था टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। ठीक है, शादी हो गई, झगड़ा नहीं हुआ ज्यादा। मैत्रेय continued. After the departure of her parents, the chaste woman Devahuti, who could understand the desires of her husband, served him constantly with great love, as Bhavani, the wife of Lord Shiva, serves her husband. O Vidura, Devahuti served her husband with intimacy and great respect, with control of the senses, with love, and with sweet words. Those boys who are not married, they are thinking, अरे वाह, मतलब एक अच्छी ट्रेंड अगर वाइफ होगी जो देवहूति के चरण कमलों पे चल रही होगी तो ऐसा होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, कहने का मतलब कि ये कलयुग है, तो आपको देवभूति जैसा नहीं मिलेगा और आप भी करदम नहीं हो। दैट्स अनदर पॉइंट, वो भी आएगा इस पे अभी। ही वाज अ पावरफुल हस्बैंड, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी यूज दैट एज एन एक्सक्यूज टू नॉट डू अवर पार्ट। इसलिए फोकस क्या होना चाहिए? हम देवहूति बने, हम करदम बने। और सेम राम सीता एग्जाम्पल, वॉट एवर स्टैंडर्ड डिबेट बिटवीन हस्बैंड वाइफ। पर यहाँ पे देयर आर वन और टू पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला है कि दिस ऑल्सो अप्लाइज टू डिसाइपल एंड गुरु। It's not just husband and wife. कहने का मतलब कि how a disciple should serve guru. And number one and number two कि how एक बार ना one of my counselees, he got married and we took him to a senior devotee for blessings. So that senior devotee said something very nice which I will never forget. He said husband should remember two things and wife should remember two things. Do you all want to know? Some of you already know probably, but किसका पहले सुनना है? हस्बैंड का सुनना है पहले। ओके, सो ही सेड कि हस्बैंड शुड रिमेंबर टू थिंग्स, सेंसिटिविटी एंड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल तो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिसल जाएगा, गिर जाएगा, उसका पता नहीं हो जाएगा, और जो सेल्फ कंट्रोल जिसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, देयर कैन बी अ टेंडेंसी टू बी निष्ठुर और कोल्ड और नॉट सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स। इसलिए उसको किससे कंपेंसेट कर दिया? सेंसिटिविटी। यू सी हाउ थॉटफुल दिस इज। So husband should always remember two things, self-control and sensitivity. And wife should always remember two things, chastity and satisfaction. जो मिला है वही बेस्ट है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। चैस्टिटी एंड सेटिस्फैक्शन। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। वर्किंग सेनली एंड डिलीजेंटली, अ गृहिणी शुड बी एक्सपर्ट। एक और जगह आता है, व्हेन सत्यभामा इज आस्किंग द्रौपदी, अरे कैसे अपने पति लोग को कंट्रोल में रखती हो, नो? तो द्रौपदी सीक्रेट बता रही है और उसमें बहुत डिटेल में द्रौपदी बता रही है कि अरे आई एम एक्सपर्ट इन हाउस होल्ड अफेयर्स।
अभी क्या किसी को कुछ आता जाता नहीं है, एंड अगेन दैट पर्सन इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, आई एम जस्ट टेलिंग द करंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड द वे सिविलाइजेशन इज हैपनिंग। तो क्या हस्बैंड, क्या वाइफ, क्या गृहस्थ आश्रम, क्या मैरिड लाइफ, इट्स ऑल जंगल, फॉरेस्ट, राइट? But this is a right combination wherein two people are coming together, they have their strengths and weaknesses, जिसका जो strength है वो उस हिसाब से उसमें इतना अच्छे से अपना ड्यूटीज कर रहा है, इसका जो strength है वो अपना ड्यूटीज कर रहा है, and they are respecting each other and they are worshipping each other. That is the right platform. So working sanely and diligently, she pleased her very powerful husband. ये बोल रहा था ना मैं, आगे आएगा. Very powerful husband, giving up all lust, pride, envy, greed, sinful activities and vanity. ये है 323 1 से 3, ये पहला 3 श्लोक का, कि देवहूति ने कैसे सर्व किया हस्बैंड को। बदले में क्या मिला? बेचारी एकदम कमजोर हो गई थी, कहाँ कैसी कितनी सुंदर थी कि वो गंधर्व प्लेन से गिर गया। और फिर भागवतम में आ रहा है कि एकदम बदसूरत हो गई, हड्डी हड्डी निकल गया, ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला, पूरा तो यही आ रहा है। तो क्या मिला? पहले तो ये मिला, शी बिकेम वीक एंड एवरीथिंग। दूसरा क्या मिला कि जो भी कर्तव्य अपने कर रहे हैं इतनी मेहनत से, इतनी साधना, इतना वो, उसका आधा ही तो, दैट इज अ साइन फॉर मैरिड लाइफ इफ दिस इज बीइंग डन प्रॉपर्ली। तो सबने वाइफ में वंडर, अच्छा मैं सेवा करूं तो मुझे मिलेगा क्या? अरे अगर इफ द हस्बैंड इज डूइंग स्पिरिचुअल ड्यूटीज नाइसली, द वाइफ इज असिस्टिंग द हस्बैंड इन स्पिरिचुअल ड्यूटीज। कि परफेक्शन ऑफ वाइफ डिफरेंट है, परफेक्शन ऑफ हस्बैंड डिफरेंट है, ये हमें समझना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड कुछ और होता है, organizational demand is different, but the way an ideal society is to function is different. So if the wife is taking care of things nicely and assisting the husband his spiritual duties, then the wife is actually getting the benefit of those spiritual duties. That is the way. That is how it is designed. लेकिन क्योंकि अभी अब हस्बैंड का भरोसा नहीं है, क्या स्पिरिचुअल ड्यूटी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसलिए सबको अपना अपना करना पड़ेगा। ऐसा उसका कंप्लीटली डिपेंड नहीं, क्या कर रहे हैं मालूम। देखो the whole system has got polluted actually, लेकिन सोचो, इमेजिन बढ़िया होता होगा सर, फर्स्ट क्लास। उधर भी हर तरह के लोग होते थे, but the brahmanas were there, the saintly people were there and to guide. You know, it is said, Rajendra was telling me, the brahmacharis and grahasthas are like fish and water in the pond. जो pond है वो है गृहस्थ आश्रम और गृहस्थास, और जो फिश है वो है ब्रह्मचारी। कैसे? फिश को रहने के लिए पॉन्ड चाहिए, बिना पानी के फिश मर जाएगी, राइट? तो ब्रह्मचारी आदमी विदाउट गृहस्थास इन सोसाइटी क्या करेगा? वो बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के क्या करेगा, राइट? तो दे नीड गृहस्थास even for the whole center to run. What kind of brahmachari for getting the money? So grihasthas are providing, maintaining the society. So in that sense, they have the water for the fish, for them to survive. But if the fish is not there, water is there, क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा पानी। फिश साफ रखती है पानी, तो हम करप्ट हो जाएंगे, हम डिग्रेड हो जाएंगे, हम मटेरियलिस्ट बन जाएंगे। नहीं नहीं, हम एकदम स्पिरिचुअल बने रहे, डिवोटी बने रहे, तो ब्रह्मचारी का चीज में आके, वो ब्रह्मचारी हो, कोई भी साधु हो, कोई भी कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। So Kardam bestowed his spiritual benefits to her, which are Ashok and Abhay. जो just nature of spiritual benefits are there. Ashok means away from lamentation, Abhay away from fear. ये अवॉर्ड कर दिया देवभूति को। खाली इतना छोटी चल नहीं दी अंदर, कह रहे तुमको दे दिया ना मैंने स्पिरिचुअल बेनिफिट, बाकी खुश रहो। नहीं, तो पता है तो बोला जाओ ये बिंदु सरोवर है, यहाँ पे डुबकी लगा के बाहर। जो डुबकी लगा के निकली, अरे वापस जैसे पहले थी ना वैसे होती, उससे भी बेटर होगी। और बहुत सारे पेड सर्वेंट्स लाके दे दिए, और आसमान में बड़ा महल। Devotee desired to bear children through him. Kardam Muni created an aerial mansion that would travel in his. ये तो इनसेंसिटिव हो गया ना। ठीक है, सोल है पर अभी बॉडी भी तो है, काट के फेंक दे। तो वी हैव टू एक्नॉलेज एंड वी हैव टू अपलिफ्ट, वी हैव टू हेल्प ईच अदर लाइक दैट। Restored her beauty, and they both traveled in that plane to various pleasure spots in the universe. Various pleasure spots in the universe. क्या लिखा है ट्रांसलेशन में सब? Seemingly enjoying, अभी now point to be known,
seemingly enjoying, Kardam did not lose his glory as a self-controlled person. अभी पूरा हनीमून मना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, वो प्लेजर स्पॉट्स इन द यूनिवर्स, आसमान में मेंशन बना दिया इतना बड़ा, उनके व्हील पे इधर से उधर जा रहा है, चल अब यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, मजाक कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट होलसेल, बट seemingly enjoying. Kardam Muni did not lose his glory as a self-controlled person. He divided himself into 9 forms and impregnated Devahuti. Same day, Devahuti gave birth to 9 beautiful daughters. Being overly excited, she gave birth to 9 females. Then Kardam said, okay, bye-bye. ये condition था ना? Not, अब you see, अब Devahuti. Yes, this also shows, just like when Mother Kunti starts speaking, तब पता चलता है कि female का क्या level था. Similarly, when Devahuti opens her mouth, तब पता चलता है इन लोग का क्या state of realization है, how advanced they were. Which goes to show that they also had training and education. Not that they were not educated in Shastras, they did not know anything. No, they were trained in everything properly. And they had also same highest level of realization. अभी देखिए देवहूति क्या बोल रही है. Not knowing your transcendental situation, I have loved you while remaining attached to the objects of the senses. Nonetheless, let the affinity I have developed for you rid me of all fear. Association for sense gratification is certainly the path of bondage, but the same type of association performed with a saintly person leads to the path of liberation, even if performed without knowledge. Anyone whose work, ये बहुत important, anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose religious life is not raising him to renunciation, and anyone whose renunciation is not raising him to devotional service to Supreme Lord must be considered dead, although he is breathing. ये सीक्वेंस क्या बोला ये श्लोक में 32356. जो भी आप काम कर रहे हो, अगर वो आपको रिलीजियस लाइफ लीड करने में हेल्प नहीं कर रहा है, और वो रिलीजियस लाइफ अगर आपको वैराग्य में हेल्प नहीं कर रहा है, और अगर वैराग्य आपको डिवोशनल सर्विस में हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये यूजलेस है. इट्स लाइक यू आर वर्किंग, इट्स लाइक यू आर डेड इवन दो यू आर वर्किंग. माय लॉर्ड, surely I have been sorely cheated by the insurmountable energy. ऐसा हुआ नहीं है इनके साथ, but that's what she is feeling. तो इनको लग रहा है explicit core spirituality मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, खाली आपसे प्यार किया, चिल्ड्रन प्रोड्यूस किया. Of the Supreme Person of Godhead, for in spite of having obtained your association, which gives liberation from mortal bondage, I did not seek such liberation. देखो दोनों बातें बोल रही हैं. एक तो ये बोल रही है कि आपका एसोसिएशन था ना, बस मेरा परफेक्शन हो गया, ऊपर में सेकंड वही था, करेक्ट. लेकिन फिर बोल रही है, लेकिन फिर भी आपका एसोसिएशन था, मैं कितना वो आपसे कितना सुन सकती थी भगवान के बारे में, वो सब कर सकती थी. दैट्स व्हाट शी इज रिग्रेटिंग. इनडायरेक्टली टेलिंग, आप जा रहे हो, एक बेटा देके जाओ जो मेरे को फिर ये सब बताएगा. That's what she is telling. Indirectly, she begged for a son who will take care of her and also enlighten her. Kardam stayed back, and eventually Lord Vishnu appeared as Kapil Dev from the womb of Devahuti. ये आज का क्लास का इंट्रोडक्शन था. अच्छा, बाय द वे उसके बाद क्या हुआ, करदम मुनि अप्रोच्ड, अच्छा हो गया, अब कपिल भी ये लोग तो भगवान लोग हैं, अपना पहले ही होते ही बड़े हो गए होंगे व्हाटएवर. तो करदम अप्रोच्ड कपिला. कौन है कपिल? करदम के बेटे. बट करदम मुनि इज ऐश्वर्य भाव. वो वृंदावन में यशोदा मैया टाइप के नहीं है कि अरे मेरा बेटा छोटा बेटा, नहीं ना, वो सब भगवान है, और भगवान ने आके बोला था ना मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, करेक्ट. तो करदम मुनि नोस दिस बॉय इज नॉट माय सन, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड. तो करदम मुनि इज अप्रोचिंग कपिला. ही ऑफर्ड प्रेयर्स एंड रिक्वेस्टेड परमिशन टू रिनाउंस एवरीथिंग एंड लीव. करदम मुनि का मेन एजेंडा तो वही था, राइट. एंड देन वन में आस्क, अरे See, that's why hearing lectures is so important. काफी चीजें तो प्रभुपाद परपोर्ट्स में क्लेरिफाई कर रहे हैं, उसके बाद जो दो चार क्वेश्चन रह जाए when we hear lectures from senior devotees क्लेरिफाई हो जाता है. Somebody में आज भगवान घर में है उनके, अब घर छोड़ के जाने का क्या? आदमी घर छोड़ के क्यों जा रहा है? भगवान को पा रहे, भगवान घर में बैठे हैं उनके. तो दो आंसर दिया जाता है इसका. पहले बात तो है कि भगवान को बेटा जैसा सोचने का इनका टेंडेंसी नहीं है करदम मुनि का. He is not in वात्सल्य रस. He was accustomed to दास्य रस. And then second, to set a right example. बेटा है तो क्या हुआ, गृहस्थ आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास. टाइम आ गया मतलब मेरे को अब डिटैच हो जाना है. रिमेंबर दैट फॉर्मूला विच वी ऑलवेज डिस्कस. फर्स्ट 25 years learn and grow. 25 to 50 earn and engage. 50 to 75 detach and attach. And 75 to 100 pray and prepare. PP, pray and prepare. But this is not to be followed literally in the sense that अच्छा अभी तो मेरा earn and engage है. Yes, आ जाओ, earn and engage, earn and engage.
यू नेवर नो 50 तक पहुंचे नहीं पहुंचे, 75 तक पहुंचे नहीं पहुंचे। तो जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, जो डेली साधना है, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग है, वो डेली करना है। देन दिस बिकम्स दैवी वर्णाश्रम, not a regular mundane varnashram, but Devi Varnashram. It is called as ARCH, arch. See, Maya is our arch rival. Maya is our arch rival. So how to overcome Maya on a daily basis? By ARCH. Association, reading, chanting, hearing. उसी चीज को घुमा फिरा के बोल दिया वापस, और अच्छा लगता है, याद करने में भी अच्छा रहता है। Maya is our arch rival. So what we have to do? Make sure either on a daily basis or on a weekly basis or some basis, association, reading, chanting, वो तो daily है, and hearing, very important. वो करते रहना है। नहीं अरे नहीं नहीं, वो तो प्रे एंड प्रिपेयर तो बाबू जी 75 के बाद था, आपने सुना नहीं क्या? तो जी अटैच डिटैच तो 50 के बाद था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। Then we'll miss the whole point. So different ashrams have been made and all that is there. So Lord Kapila promised to give Devahuti, and then Kapil said, "जाइए जाइए पिताजी, no problem, don't worry. I will take care of mother, और उनको जो चाहिए मैं दे दूंगा, पूरा दिव्य ज्ञान उनको दे दूंगा, don't worry, you please go." एंड यहां पर अब शुरू होता है चैप्टर 25, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। अमेजिंग सेक्शन। जितना भी हमारे पास टाइम है उतना हम करेंगे। बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू हियर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। सो चैप्टर 25। सो इज द बैकग्राउंड क्लियर टू एवरीवन? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। नाउ वी गेट इनटू टीचिंग्स, देन इट विल मेक सेंस। ओके, सो चैप्टर 25। अच्छा, बाय द वे 25 से 32 या 33 ये है पूरा कपिल देव बोल रहे हैं अभी, एक के बाद एक के बाद। बीच में जो देवभूति क्वेश्चंस पूछ दिए, जस्ट सी अगेन, रिमेंबर क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म? नॉलेज इज थ्रू क्वेश्चन आंसर, just like Bhagavad Gita. Similarly here also we will see Kapila is speaking one by one. Obviously first Devahuti will speak, she will start asking questions, then Kapila will answer, in between again she will ask questions, then Kapil Dev is answering, ऐसा करके चलते जाएगा। 25 से 32 या 33 exactly वो we will see in the PPT, 32 to 33 तक। Amazing, जो मैं बता रहा था ना शुरू में, how many of us want to perfect our life? अभी हरी बोल थोड़ा ढीला हो गया। how many of us want to perfect our life? तो ये जो चैप्टर्स है ना 4-5, amazing instructions have been mentioned here, amazing, and we'll go over some of them and then see how Prabhupada is making it even more beautiful. We'll see that now, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं से पढ़ूंगा अभी। तो 25 से शुरू हुआ, we'll just quickly skip and go to those verses which are very very important. तो अभी देखिए 25.7 में, 25.7 Devahuti said, she is beginning now, questions. Devahuti said, I am very sick of the disturbance caused by material senses. For because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. This sentiment of Devahuti is very important and very nice. Prabhupada writes, if you see here, Prabhupada writes here, we should know that beyond these temporary senses are our permanent senses, which are now covered by the material body. The permanent senses being contaminated by matter. तो सोल के सेंसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, सोल के सेंसेस होते हैं। पर ये जो सेंसेस है अभी ना, ये हमारा मटेरियल मैनिफेस्टेशन है जो कि पॉल्यूटेड है, जहर भरा है इसमें। क्या चीज का जहर भरा है हमारे सेंसेस में? विष। क्या विष है? भोग वृत्ति, इंजॉइंग मेंटालिटी। देखिए, एक होता है विष, एक होता है विषय। व्हाट इज विष? पॉइजन। व्हाट इज विषय? सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो सेंस ऑब्जेक्ट्स ज्यादा डेंजरस है। सोचो यहाँ पिज्जा रखा है और केक रखा है, और पैसा रखा है, WWW रखा है, ये ज्यादा डेंजरस है विषय? तो ये सब विषय है, सेंस ऑब्जेक्ट्स। इज दिस मोर डेंजरस और इज द विश, द एंजॉइंग मेंटालिटी मोर डेंजरस? क्योंकि आप तो बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स को भी केक खाते हुए देखोगे, हमको लगा रहे ये लोग केक खा रहे, पिज्जा भी खाए थे ये लोग। एक दिन मैं देखा था गोविंदास में बैठे थे दो ब्रह्मचारी, पिज्जा खा रहे थे, हैं? तो आप पिज्जा देख लोगे, आप भी सोचोगे तो मैं भी खाऊं। हो सकता है वो पिज्जा खा रहे हो एज अ सर्विस। ऐसी सर्विस डेंजरस है वैसे। करनी नहीं चाहिए ज्यादा। पर स्पिरिचुअल मास्टर्स की अगर बात करें, तो सोचो कोई डिसाइपल प्रेम से बर्थडे में उनको पिज्जा बना के दिया है, तो वो थोड़ा सा ले लिया, बाकी महाप्रसाद जैसा छोड़ दिया, राइट? महा जैसा छोड़ दिया। सो इसलिए वी कैन नॉट सी समबडी जस्ट फ्रॉम आउटसाइड,
वी हैव टू सी कि वो विषय वहां पे है मेन, कि विष उसके अंदर विष है ही नहीं उस व्यक्ति के अंदर. तो नाउ देयरफॉर इट्स लाइक एज गुड एज इट्स लाइक जस्ट लाइक डीटी है वैसे ही पिज्जा है. मतलब इट्स ऑल कृष्णा. आई एम सीइंग कृष्णा एवरीवेयर. आई एम सीइंग कृष्णा प्रसादम, दैट प्लेटफॉर्म, राइट. तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि विष और विषय में ज्यादा डेंजरस क्या है? विष. क्यों? क्योंकि विषय तो आपका केवल एक जीवन बर्बाद करेगा. ये जो विष है ना, जीवन आफ्टर जीवन, जीवन आफ्टर जीवन आपको साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रखेगा. वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट. दिस विषय इज मोर. एनीवे, सो जो हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस हैं वो क्या करने के लिए हैं? भगवान की सेवा करने के लिए. और जब वो कंटेमिनेट हो जाते हैं और मटेरियल सेंसेस जैसे बन जाते हैं तो क्या करना चाह रहे हैं? इंजॉयमेंट करना चाह रहे हैं. वही प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं. सी हाउ ब्यूटीफुल. वी शुड नो that beyond these temporary senses are our permanent senses, which are now covered by the material body. The permanent senses being contaminated by matter are not acting properly. Devotional service therefore involves freeing the senses from this contamination. When the contamination is completely removed and the senses act in the purity of unalloyed Krishna consciousness, we have reached Sat Indriya or eternal sensory activities. Eternal sensory activities are called devotional service. देखो क्या डेफिनेशन है डिवोशनल सर्विस का. और यही चैतन्य चरितामृत के इंट्रोडक्शन या प्रीफेस में प्रभुपाद लिखते हैं. चैतन्य चरितामृत का मीनिंग क्या है? कैरेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, कैरेक्टर ऑफ सोल और एक्टिविटीज ऑफ सोल. सोल क्या करता है एक्चुअली? वो चैतन्य चरितामृत में लिखा है. ये करता है सोल, डिवोशनल सर्विस करता है कृष्ण का. सेम प्रभुपाद इज राइटिंग हियर. इटर्नल सेंसरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल एक्टिविटीज. whereas temporary sensory activities are called sense gratification. कितना मजेदार. अनलेस, अब ये देखिए, ये देवहूति फील कर रही. क्या फील कर रही है देवहूति? अरे यार, इसलिए मेरे को माउस चाहिए था. एनीवे, इज एवरीबॉडी एबल टू? हाँ. अनलेस वन बिकम्स, प्लीज नोट दिस केयरफुली, unless one becomes tired of material sense gratification, there is no opportunity to hear transcendental messages from a person like Kapila. Devotee expressed that she was tired. अरे क्या यार, थक गए यार बार बार. पुनरअपि, वो क्या है? पुनः 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 चर्विता चरवना नाम. प्रहलाद महाराज सेज इन भागवतम 7th कैंटो. कि जो हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, वो पहली बार कर रहे हैं नया नया? नहीं, जन्म जन्मांतर से यही करते आए हैं. इसलिए प्रहलाद महाराज इसको क्या बोलते हैं? पुनः पुनः चर्विता चरवना नाम. जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना शुगर केन चबाया, क्या मिलेगा? जूस मिलेगा ना. एक और बार चबाया तो और मिलेगा. देखा कितना बार ऐसे 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 करते हैं. अब हो गया पूरा. अब चबाएंगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. पुनः पुनः चर्विता चरवना, हम वो चबा रहे हैं जो चबा चुके हैं. अगली बार किसी को च्युइंगम खाते हुए देखिए तो आप ये समझ सकते. दिस इज शास्त्र चक्षु. This Shastra Chakshu. That we should be able to see apparently material things and remember some shloka of Shastra, some purport of Prabhupada. च्युइंगम में भी यही होता है ना. Of course, as च्युइंगम नॉन वेज होती है तो इसलिए खाइए मत, और दूसरा की खाएंगे तो गैस वैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है. बट एनीवे, जब भी आप कभी खाए होंगे तो जब शुरू में 2-3 मिनट च्युइंगम चबाते हैं तो क्या होता है? मीठा मीठा जूस मजेदार. उसके 5 मिनट बाद बस है पुनः पुनः चर्विता चरण, थूक दो यार, अब खत्म. दैट इज मटेरियल लाइफ, दैट इज कंडीशन लाइफ. तो देवहूति इज टेलिंग आई एम सिक ऑफ दिस. क्या यार, बहुत हो गया. सिमिलरली शंकराचार्य इज फीलिंग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे शरणम यह संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारिपाह्यम. वी शुड कम टू दैट स्टेट ऑफ फीलिंग. हाउ विल दैट कम? आइदर बिकॉज वी हैव डन दैट सो मेनी मिलियंस ऑफ टाइम्स, इसलिए वो हमारे अंदर है, वो कहीं ना कहीं सटल फॉर्म में. इसलिए हर एक की चेतना अलग अलग. वी ऑल आर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर जर्नी. नंबर 1. नंबर 2, by mercy of pure devotee. By mercy of pure devotee. You realize these realizations are important. That is Krishna consciousness. That is real Krishna consciousness. So Devahuti is telling, I'm sick of sense gratification. And actually senses are meant to cheat us. वो आपको पता है ना वो एग्जाम्पल? What are the 5 senses? एक एक करके लेते हैं. आंख. आंख किसको चीट करता है? उसका गरुड़ पुराण में एग्जाम्पल आता है. दिस इज फ्रॉम गरुड़ पुराण. गरुड़ पुराण का नाम तो सुना होगा. तो गरुड़ पुराण में एक एग्जाम्पल आता है कि आंख, वो जो दिवाली में जो बिजली जलाते हैं, दिया जलाते हैं, वो देखा पतंगे होते हैं, मॉथ्स. वो बेचारा पतंगा में परवाना ऐसा करके फट से आ जाता है, मर जाता. तो किसने चीट कर दिया उसको? आंख ने चीट कर दिया. एग्जाम्पल नंबर 1. स्मेल. जो भंवर होता है या हनी बी होता है, जो भी होता है, भंवर लिखा है आई थिंक वहां पे, वो जब फूल की स्मेल सूंघता है, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है एकदम और घुस जाता है, और वो अपने होश में ही नहीं रहता है और फूल बंद हो जाता है.
और वो मर जाता है। किसने चीट कर दिया उसको? सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल। तीसरा क्या? सेंस ऑफ हियरिंग। एक एग्जांपल आता है, एक हिरन होता है एक पर्टिकुलर तरीके का। हम्म वो हिरन को जब कोई म्यूजिक कहीं से बजता है ना, तो उस म्यूजिक की तलाश में वो ढूंढता रहता है और मर जाता है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। नो, और एक आई थिंक बैक पाइपर एंड द रैट का भी एक स्टोरी है कुछ, तो वो फ्लूट बजाया, कुछ बजाया, सबको लेके चला गया। सेंस ऑफ हियरिंग हैज चीटेड। फोर्थ क्या हुआ? टंग। फिश, गरुड़ पुराण टॉक्स अबाउट फिश। मछली कैसे पकड़ते हैं? उसके लिए कुछ तो पिज्जा या पास्ता या जो भी उसको अच्छा लगता होगा, उसको ऐसे टांग देते हैं, आओ आओ आओ। और मछली क्या कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती टंग को, बोलती हाँ आई आई आई, मैं आई मैं आई, और पकड़ लेती है, फंस जाती है। हु चीटेड? सेंस ऑफ टेस्ट। कौन बच गया? टच, सेंस ऑफ टच। एलिफेंट, गरुड़ पुराण से एलिफेंट। एक मेल हाथी जो होता है ना, उसको पकड़ना आसान नहीं है। कोई नहीं पकड़ सकता उसको। ऐसे ऐसे करके हिलते रहेगा, सबको मार डालेगा कोई पास है। आपको दूर से गन मार दिया वो बात अलग है, तो मारना नहीं चाहिए ना। बिना मारे पकड़ना है आपको, वेरी डिफिकल्ट। और एक आसान वीक पॉइंट है हाथी का, टच। वो दूर एक फीमेल हाथी को खड़ा कर देते हैं। अब ये हाथी जो है ना, टच करना चाह रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और वो फीमेल हाथी के जस्ट आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, उसको घास फूस से ढक देते हैं। अब ये अनकंट्रोलेबली जाता है फीमेल को टच करने के लिए। टच क्या कर पाता है बेचारा? नीचे गिर जाता है। पकड़ लिया। हु चीटेड द एलिफेंट? Sense of touch. Garud Puran says these five senses are meant to cheat us. Okay. Therefore, it is said Krishna consciousness and sense gratification go ill together. ये दोनों साथ में नहीं कर सकते। राजम प्रभु एक लेक्चर में बताते हैं कि साथ में करना मतलब, एक तरफ तो आप आग प्रज्वलित करना चाह रहे हो, ऊपर से पानी डाल रहे हो। कौन करेगा ऐसा? कर रहे हैं हम सब। हाँ? लेकिन कम से कम जब बार बार सुनेंगे तो कम से कम थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, थोड़ा किसी चीज से बचेंगे। दैट्स द होल जर्नी। द जर्नी व्हेन वी हियर दिस, इट इज नॉट टू बिकम डिप्रेस्ड, छोड़ो यार, बंद करो यार, दूसरा काम करते हैं। नहीं 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 नहीं। दैट इज अ सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर स्टूडेंट कौन होगा? देखेगा, अच्छा दिल्ली बहुत दूर है, गोल इज आउट ऑफ रीच, बट इट शुड नेवर बी आउट ऑफ साइट। अगली बार जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करें, हमारे लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या हो गया? ब्रह्मचारी लोग के लिए, ये लोग के लिए बहुत बड़ा बड़ा लेवल है। हमारे लिए सोचो, बिना भोग लगाए खा लिया। ये तो सिंपल सिंपल चीजें तो कर सकते हैं ना कम से कम हम। हाँ? तो वही वही प्रिंसिपल पहले उसमें एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें, तो अगली बार जब भी कुछ हो जो लगे कि अरे खा लेते हैं बिना भोग लगाए, सोचा अरे यार क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, एक तरफ आग जला रहे हैं, ऊपर से पानी डाल रहे हैं। वंस आयशा प्रभु वाज टेलिंग कि अवर बॉडी इज लाइक अ कैनिस्टर। वो होता है कनस्तर, होता है ना टिन का, वो केरोसिन, केरासन तेल का, केरोसिन ऑयल। इमेजिन वी आर लाइक अ कैनिस्टर ऑफ केरोसिन ऑयल। और ये जो होल्स है ना, यहाँ से अगर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो इट्स लाइक टेकिंग अ माचिस और सर इन होल से अंदर डालने का, ब्लास्ट हो जाएगा पूरा। ऐसा नहीं करने का। ऑलरेडी वी हैव केरोसिन ऑयल इनसाइड, सो लेट्स नॉट टेक रॉन्ग इनपुट्स, इट विल ओनली ब्लास्ट। यहाँ पे मैं फायर का रॉन्ग एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले जो बताया था वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का फायर बता रहा था। अमेजिंग पर्पस, दीज आर सच अमेजिंग थिंग्स। ओके, so sense gratification and Krishna consciousness go ill together. But then, okay, there are some things which are mentioned here about she's feeling grateful to his son as guru. She is seeing her son as guru, and then Prabhupada is telling कि गुरु जो होता है हमको इस पार से उस पार ले जाता है। And Prabhupada writes this very nicely here. पारगम, हाँ ये देखो, पारगम, पारगम पार करा रहा है, गुरु क्या करा रहा है? Paragam refers to one who can take the disciple to the other side. This side is conditioned life, the other side is life of freedom. क्या मजेदार है ना परपोर्ट प्रभुपाद का। दिस साइड इज कंडीशन लाइफ, अदर साइड इज लाइफ ऑफ फ्रीडम। आजादी चाहिए, पर वो असली आजादी। यहाँ पे आजादी नहीं है, यहाँ पे हम बंधे हुए हैं, प्रिजनर हैं। जेल अगर आप गए हो, व्हेन आई वेंट टू द अंडमान निकोबार समटाइम वी हैड गॉन, राइट, वहां पे एक क्या है, सेलुलर जेल, समथिंग इज देयर। तो वहां पे दे शो यू कि हाउ द प्रिजनर्स आर टाइड विद चेन्स एंड ऑल दैट। दैट इज हाउ वी आर इन दिस वर्ल्ड। वी फील, वी थिंक वी आर फ्री। अरे कुछ भी करूंगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लिव लाइफ किंग साइज, ये दिल मांगे मोर, बकवास है सब। क्योंकि हम सब माया की जंजीरों से बंधे हुए हैं। व्हाट इज द श्लोका? प्रकृते क्रियामानानि गुना कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन। जो प्रकृति है, द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आर मेकिंग यू डू समथिंग, एंड अहंकार विमूढ़ात्मा, यू फूल, बिकॉज ऑफ अहंकार करता हम इति मन्यते, यू आर थिंकिंग यू आर डूइंग इट। सो वी आर बीइंग मेड टू डू रॉन्ग थिंग्स, एंड देन वी आर आल्सो बीइंग मेड टू सफर बिकॉज ऑफ दैट। पूरा पोपटी करके रख दिया हमारा।
फिर जब आदमी ये सब पढ़ता है तो थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है. वेट वेट, आई वांट टू स्टार्ट लिविंग. राइट नाउ आई एम ओनली अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ माया. नो, आई एम नॉट मेंट फॉर दैट. आई एम कृष्णा's son. I am not meant to live my entire life in jail. I will come out and start living a proper life out of jail. That is Chaitanya Charitamrita. That is the eternal activities of senses. Okay. फिर 25 9 हुआ 10. अभी 10 में पहला क्वेश्चन पूछ रही है. पहले तो देवती अपनी जी, दिस इज अनदर वेरी नाइस थिंग. जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं ना, पहले ये बताते हैं कि हम कितने नालायक हैं. प्रेयर्स में भी वही होता है. वी हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी डिवोटीज, राइट, दैट व्हेनेवर वी प्रे, फर्स्ट वी से हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर, वी से हाउ ग्रेट यू आर, एंड देन वी से व्हाट वी वांट. Similar, same thing we'll see whoever these people are approaching. तो पहले devotee is telling about how I am not ये वो, and now she's asking question number 1. 25.10 में her question number 1. What is her question? Now be pleased, my Lord. उनका बेटा है. To dispel my great delusion. Due to my feeling of false ego, I have been engaged by your Maya and I have identified myself with the body and consequent bodily relations. Aham mameti. तो क्या पहला क्वेश्चन पूछ रही है देवभूति कि फॉल्स ईगो के कारण और माया के कारण मैं अहम ममिति में फंसी हुई हूं, इससे बाहर कैसे निकलूं ये बताइए. अहम ममिति मतलब आई एंड माई ऑन द बॉडीली डेजिग्नेशंस. So she is saying, please dispel my illusion of aham mameti. And this illusion is also created by Lord only. भगवान ने ही किया है ये. अब कोई पूछेगा तो भगवान ने क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे. We wanted to enjoy like Krishna. How can we enjoy like Krishna unless we forget Krishna? Correct? To be able to enjoy like Krishna, we have to think we are Krishna. That means we have to forget real Krishna. Only then we will feel. दो कृष्णा नहीं हो सकते. Like that thing which I often remember. जब राम विमुख हुआ राम समुख, तो अहम ब्रह्मास्मि के पंख कटे या जले. So रावण was thinking I am supreme. तब तक जब तक वो अपने से बड़ा किसी को देखा नहीं था. When he saw the supreme, he understood. Matter over, game over. So then Prabhupada is writing here कि Lord is merciful. The Lord is merciful. If anyone wants to forget him and enjoy this material world, he gives him full facility. कितना मर्जी है बताओ भगवान का. भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं कि हमने बोला हमको आपके साथ नहीं रहना है, तो भगवान ने इतना बड़ा तामझाम बना दिया जिससे हम मजा कर पाए. कर नहीं सकते वो बात अलग है, वो तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही है, कैसे चेंज कर रहे. पर फिर बोलोगे तो सफरिंग क्यों डाला? डाला जिससे कि असली में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के पास वापस आ जाए. जैसे पेन इज नॉट बैड, इट इज गुड. We have discussed this, right, in our Bhagavad Gita classes. Pain is good or bad? It's good. पेन नहीं होगा तो समझेंगे कैसे कुछ गड़बड़ है. करेक्ट. इसलिए सफरिंग डाला भगवान ने, वो भी कृपा है. और ये सब इतना बड़ा है और आनंद और इंजॉयमेंट का इतना सारा फैसिलिटीज बना दिया, इतने अलग अलग लोग बना दिया. अच्छा ये एंजॉय करना है यहाँ जाओ, ये एंजॉय करना है यहाँ जाओ, ये स्टूल खाना है पिक बन जाओ, ये करना है वो जो चाहिए बना. इतना बड़ा पूरा क्रिएशन का जो चैप्टर है. रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग व्हाई क्रिएशन का इतना डिटेल्स दिया है भागवतम में. आई हैव हर्ड 2-3 आंसर्स फ्रॉम सीनियर डिवोटीज. वन आंसर इज जिससे हमको समझ में जाए हम कितने इनसिग्निफिकेंट है. जब ब्रह्मा का लाइफ देखेंगे, जब देखेंगे ब्रह्मा जो है कारण रिवर में बबल्स के जैसा आ रहे हैं जा रहे हैं ब्रह्मा, तो हमको हमारा जो पूरा 60-70-80 ईयर्स का लाइफ लगेगा ये क्या है, ये तो ये भी नहीं है. इसमें भी न जाने क्या क्या हो गया हायर लेवल्स पे. राइट. तो एक वो कारण है जिससे हमको ये रियलाइज हो कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट है, हमारा लाइफ कितना इनसिग्निफिकेंट है. दूसरा और तीसरा, हमको ये लगे कि अच्छा इतना कुछ भगवान ने किया है कि हम उनको भूल पाए. इतना प्यार करते हैं भगवान हमसे. हमने बोला भूलना है, भगवान ने बोला नहीं गड़बड़ हो जाएगा. हमने बोला नहीं भूलना है, ठीक है. उन्होंने पूरी कोशिश कर ली अपनी हमको उनको भुलाने के लिए, इसलिए माया बना दिया. एट द सेम टाइम क्योंकि इतनी कृपालु हैं, प्यार करते हैं, ये भी ऐसा कुछ डला दिया कि एक ना एक दिन हम वापस आ पाए. फोर्स नहीं कर रहे हैं. परमात्मा एंड सोल आर सिटिंग लाइक 2 बर्ड्स ऑन अ ट्री. हम खट्टे मीठे फल खाने में लगे हैं, बॉडी के ट्री के खट्टे मीठे फल, और परमात्मा चुपचाप हमको वेट करके देख रहा है कब हम ऐसे मुड़ेंगे. अभी हम सब मुड़ गए हैं, बस इतना धीरे से हरि बोल बनना. ये कृष्णा कॉन्शियसनेस. हैव वी ऑल टर्न टुवर्ड्स परमात्मा और नॉट? टर्न तो करें ना भाई. We should also acknowledge good things in our life. Humility does not mean to say that I'm not doing anything good only. That's not humility. Humility and self-respect एक अलग topic है. So we should acknowledge we have turned, because only then we will stay true to it. Then only we will stay true to it. Then only we will feel the responsibility of it. जैसे कोई पुलिस के व्यक्ति जब पुलिस ज्वाइन कर लेगा तो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनेगा,
वो इस चीज को इग्नोर नहीं करेगा, निग्लेक्ट नहीं करेगा कि मैं पुलिस में हूं, वो एक्नॉलेज करेगा इस बात को, एंड अकॉर्डिंगली ही विल बिहेव लाइक अ पुलिसमैन, रिस्पॉन्सिबली फॉलोइंग ऑल द रूल्स. So we should acknowledge that we are devotees of Krishna. We are trying to be devotees of Krishna. Now we have turned towards him. Now कोई धीरे धीरे जा रहा है, कोई सो गया है बीच में, कोई तेज भाग रहा है. और आप देखो आपको अपना, so let's say ट्रक इज गोइंग ऑन आगे, और आप साइकिल चला रहे हो और स्लोप भी है. साइकिल चल नहीं रही है, बहुत मुश्किल से चल रही है. कभी कभी लग रहा है रुक जाओ यार, कहाँ आ गए. कभी कभी लग रहा है चलो पीछे चलते हैं. ऐसे में क्या करने का, एक रस्सी निकालने का, और रस्सी निकाल के वो पीछे ट्रक के पीछे लिखा है आ जाओ मुझे पकड़ लो, वट एवर, तो ट्रक के पीछे से लगा देने का. अब थोड़ा देर पैडल छोड़ के आराम से चलिए, नो प्रॉब्लम. सो वी हैव टू सी हु वी आर कनेक्टेड टू, हु वी आर फॉलोइंग, किसको पकड़ के पकड़े पीछे पीछे चल रहे हैं, और वो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत जरूरी है, अदरवाइज विल बी लॉस्ट. सो बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड वन इज अलाउड टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, but when one is disgusted with material enjoyment and is frustrated, and when one sincerely surrenders into the lotus feet of the Lord, then the Lord is so kind. There is the other aspect of his mercy, that he frees one from entanglement. है ना बढ़िया लाइन. हाँ, वो भी भगवान की काइंडनेस थी और मर्सी थी, ये भी भगवान की काइंडनेस और मर्सी है. हाँ? और ये डिस्गस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड है ना, हमारे नित्यानंद सभा बॉय इसको गलत ले लेते हैं कभी कभी. बोलते हैं प्रभु जी इसलिए मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फायर हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, गाली मिलेगी ऑफिस से, बॉस लात मार के निकाल देगा. प्रभु जी यही तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन शुड बी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्गस्टेड विद मटेरियल लाइफ. ऐसा है, when you will see more and more cases of devotees in ISKCON all over the world, and all different kinds of guidance all over the world, then you will know what is what in this material world. ISKCON is at the end of the day a hospital. There have been cases of wrong guidance also, many things. But anyway, the right understanding of this is not that now we end up creating problems in our life, because we should also remember the other principle of do your best and leave the rest. We should also remember the core message of Bhagavad Gita, to do our duties for the pleasure of Krishna nicely. We should also remember the core message of decorating the ashram, not polluting the ashram. And therefore we need proper guide to reconcile both. What this means is we have to do our best. Now whatever happens, be happy about it. कि जो मिला वो है, क्योंकि और क्या ही एक्सपेक्ट किए थे तुम यहाँ, सोचे थे हैप्पीनेस मिलेगा. You have to be disgusted with this material world, that there is no happiness here. That is the meaning. So when a devotee is doing duties, he is not doing duties for happiness. Point to be noted. When a devotee is earning money, he is not earning money so that by that he will become happy. No. Then he is not following this principle. He is disgusted with this material world. What does it mean? He knows there is no happiness here. How he knows? Because he's a pure devotee? No. Because of Guru Sadhu Shastra. He knows there is no happiness in this world. But then why is he doing his duty? To please Krishna, not to get happiness. So Prabhuji, happiness ka kya? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. A devotee tries to find happiness in temple, in devotees, in Bhagavatam, in holy name, in deities. That's where I know यहाँ पे happiness है. तो हम यही ढूंढ रहे हैं. यहाँ हमको पता है happiness है ही नहीं, ढूंढने से फायदा नहीं. जो लोग ढूंढ रहे हैं ढूंढने दो उनको. जिसको बता पाएंगे बता देंगे, समझेगा समझ जाएगा, नहीं समझेगा ढूंढते रहने दो. That's the point of disgusted with material enjoyment. Just for your information, नौ नहीं बजाया अभी. Okay. Nice point ना, which Prabhupada writes here. Then you move ahead. Amazing teaching. Actually ये जो section है ना, again that's why I'm saying हम तो skip कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, और पता नहीं अभी कब तक 9 10 तक, I don't know how many we will be able to cover, but please do read this as a homework. Okay, सभी थोड़ा और आगे जाते हैं. Another nice thing comes here, 25 to 12 में this says Satam Gatir. Maitreya said, after hearing, बीच बीच प्लीज नोट ये क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है, देवहूति और सबसे इनर लूप कोडिंग के लैंग्वेज में, व्हाट इज द इनर मोस्ट लूप? देवहूति एंड कपिल का कॉन्वर्सेशन. उसका जस्ट आउटर लूप क्या चल रहा है? विदुर एंड मैत्रेय का कॉन्वर्सेशन. उसका आउटर लूप क्या चल रहा है? सुखदेव परीक्षित. उसका आउटर लूप क्या चल रहा है? शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी. तो अगर लूप किसी को सिखाना किया, डिवोटी लोग ने ट्राई किया, बच्चे लोग को जब कोडिंग वोडिंग सिखाते हैं तो ऐसा सिखा देते हैं. शास्त्र चक्षु क्या प्रॉब्लम है? Examples देना है ना. See, that's a preacher, that's a teacher who can give real life examples. Prabhupada writes in first canto that you have to repeat the same message but with realization. What does it mean that you are speaking with realization? You are able to take contemporary examples and teach, which Prabhupada did. मुकुट को प्रभुपाद बोलते हैं हेलमेट, और ये जो वैकुंठा प्लेन्स है जहां से वो गंधर्व गिर गया, उसको प्रभुपाद बोले एरोप्लेन्स.
तो हम लोग समझ पाए। हो सकता है वो दिखने हो उसमें कंप्लीटली अलग हो, सो दैट वी कैन रिलेट। तो मैत्रेय सेड आफ्टर हियरिंग ऑफ हिज मदर्स अनकॉन्टेमिनेटेड डिजायर फॉर, अभी वो देवहूति ने बोल दिया जो बोल दिया, अनकॉन्टेमिनेटेड डिजायर फॉर ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही थी वो, हाँ बताओ ना, नहीं वो सच में फील कर रही हैं, अरे आई एम डिस्गस्टेड विद मटेरियल एंजॉयमेंट, प्लीज टेल मी हाउ डू आई गेट आउट ऑफ माय इल्यूजन ऑफ अहम ममेति। लॉर्ड थैंक्ड हर विद इन हिमसेल्फ फॉर हर क्वेश्चंस। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू प्लीज द स्पीकर। I mean, that is also one aspect. Like when after classes we say, na, any questions? Hmm? When we ask questions, whoever is the superior with whom you are asking questions, actually they become happy. Don't think that they are getting bothered. टाइम का एक अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है इस वर्ल्ड में, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, व्हेन वी अप्रोच सीनियर्स विद क्वेश्चंस, वी आर नॉट बॉदरिंग देम, वी आर एक्चुअली मेकिंग देम हैप्पी इफ दे आर रियल मैच्योर सीनियर्स। दे मे आंसर टुडे, दे मे आंसर आफ्टर 1 month, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, they should not. Lord thanked her within himself for her questions, and thus his face smiling, he explained the path of the transcendentalists who are interested in self-realization. He explained the path of the transcendentalists कि सताम गतिर, ये जो डिवोटी लोग जिस पाथ पे चलते हैं ना, उस पाथ के बारे में अब कपिल देव बताने वाले हैं। 13, अब कपिल देव बता रहे हैं कि देखिए मम्मी, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, ये टॉप मोस्ट योगा है, ये भक्ति जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड आंसर्ड, द योगा सिस्टम विच रिलेट्स टू द लॉर्ड एंड द इंडिविजुअल सोल, which is meant for the ultimate benefit of the living entity and which causes detachment from all happiness and distress in the material world, is the highest yoga system. And in 15, he says, the stage in which Kapil Dev is speaking. The stage in which the consciousness of the living entity is attracted by the three modes of material nature is called conditioned life. But when the same consciousness is attached to the Supreme Personality of Godhead, one is situated in the consciousness of liberation. That is Krishna consciousness. Brahma Bhuta Prasannatma, na sochati na kankshati. And therefore Prabhupada called this society as International Society for Krishna Consciousness. अभी 16 to 18 में पता है कपिल जी क्या बता रहे हैं? कपिल देव, he is telling symptoms of pure devotees या symptoms of liberated mind, जिसका mind three modes of material nature से contaminated नहीं है. See in just previous श्लोका what is he telling? कि जिसका mind three modes of material nature में लगा हुआ है वो conditioned life, और जिसका भगवान में लगा हुआ है वो devotional life. Simple. It's all about mind. It's all about consciousness. You know, it is just a matter of that small switch. ये किया तो Krishna consciousness, ये किया तो material consciousness. Just like the thing itself, जैसे Prabhupada says, this mic, is it Maya or is it material or is it spiritual? Prabhupada says depends on what you are using it for. If you are using it for some Bollywood songs and for some mundane things of this world, it is material. But if you are using it for Krishna's service, it is spiritual. It's just a small flip based on the purpose. And then Kapil Dev is telling that what is the characteristic of that liberated mind, which is in Krishna consciousness. One by one, he is telling several things. We'll just read the translations. When one is completely cleansed of the impurities of lust and greed produced from the false identification of body as I and bodily possessions as mine. Remember first question of Devahuti कि अहम ममिति से मेरे को बाहर निकालो. तो कपिल देव ये बोल रहे हैं कि जब हमको समझ में आ जाता है हम बॉडी नहीं है सोल है, तो हम अहम ममिति से बाहर निकल जाते हैं, आई एंड माइंड से बाहर निकल जाते हैं. और जब ये लस्ट और ग्रीड की जो इम्प्यूरिटीज हमारे ऊपर आ गई हैं, दे आर लाइक कवरिंग्स ऑन अवर चित्ता. चेतो दर्पण मार्जनम, वी हैव टू क्लीन द मिरर ऑफ अवर कॉन्शियसनेस. तो मिरर ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर क्या हो गया है? धूल लग गई है. अब यहाँ पे भी देखो शास्त्र में 3 चीज लिखी है. किसी के ऊपर कम कवरिंग है, किसी के ऊपर ज्यादा कवरिंग है, किसी के ऊपर और ज्यादा कवरिंग है. इट इज डिस्क्राइब्ड द मिनिमम कवरिंग इज दैट ऑफ स्मोक ऑन फायर. कभी कभी देखा है आपने, मान लो यज्ञ चल रहा हो और दूर से आप फायर को देख रहे हो, तो समटाइम्स यू विल सी सम वेवीनेस थिंग. दैट फायर इज बीइंग कवर्ड बाय स्मोक. दैट इज द मिनिमम थिनेस्ट कवरिंग. तो देयर आर पीपल who may be sitting right now in this assembly also, जिनका जो कवरिंग है इतने इतने जन्मों के बाद या इतने सालों की भक्ति करने के बाद अभी कवरिंग बस उतना ही बचा होगा शायद. इससे ज्यादा कवरिंग की तुलना किससे की गई है? डस्ट ऑन मिरर. जैसे मिरर पे अगर धूल लग जाए बहुत सालों बाद, तो हमको डस्टिंग वाला कपड़ा लेके क्लीन करना पड़ता है, तब चेहरा दिखता है. वो इससे थिकर कवरिंग हुआ. उससे भी थिक कवरिंग की तुलना की गई है द कवरिंग ऑफ द वूम्ब फॉर द एम्ब्रियो. कवरिंग ऑफ द वूम्ब फॉर द एम्ब्रियो. किसी के अंदर इतनी मोटी परत चढ़ गई है, किसकी? लस्ट,
greed, envy, anger, pride, illusion. These concepts should be crystal clear in our mind. ये जो covering हम बोल रहे होते हैं, what is the covering we are talking about? The coverings of anarthas, the coverings of attachments, the coverings of conditionings, all that. तो he is Kapil ji is telling that when this is cleansed, ये सब जब चला जाता है तो क्या हो गया, माइंड अब प्योर हो गया, कॉन्शियसनेस प्योर हो गया हमारा, एंड देन ऑटोमेटिकली one is able to come out of it. In that pure state, he transcends the stage of so-called material happiness and distress. And then in that state, what he's able to do? He's able to see himself clearly. That mirror clean हो गया, तो I am able to see myself and Krishna both very nicely. Self-realization. This is self-realization. I remember my very first Discover Yourself class, many years back, 2000, 2001. And the first topic was, does God exist? अब ये तो वो गेम ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट नया नया हो गया है, और ओल्ड डिवाइस कोर्स, इट यूज्ड टू बी 6 सेशंस. फर्स्ट सेशन वाज डज गॉड एग्जिस्ट. वो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है राधा गोपीनाथ प्रभु. राजश्याम प्रभु's डिस्कवर योरसेल्फ फर्स्ट सेशन वाज डज गॉड एग्जिस्ट. एंड देन बिकॉज एवरी स्टूडेंट में थिंक, हमने सबको बोला है डिस्कवर योरसेल्फ करके, एंड इन टुडेज वर्ल्ड एवरीबॉडी वांट्स सेल्फ रियलाइजेशन. कुछ तो एक फैंसी आइडिया है अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. वी वांट टू डिस्कवर अवरसेल्फ, सो टाइटल बहुत अट्रैक्टिव बना दिया. अब बुला के पहली क्लास में भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो नेचुरली जो यूथ है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर डिवोटीज है, व्हाट्स द नेचुरल फर्स्ट क्वेश्चन विल कम इन देयर माइंड? सेल्फ का बोल के या भगवान के बारे में क्यों बता रहे हो? नहीं, भगवान हमको नहीं चाहिए. तो Raisham used to clarify in those initial classes that how self-realization and God realization go hand in hand. Just like if you have to see yourself in mirror, can you see yourself in mirror in a dark room? देखो क्या एग्जाम्पल है, चीजें कितनी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है. Use your intelligence, use your mind, use your senses, everything, whole existence in service of Krishna. How will you use your intelligence in service of Krishna? By reading Shastras, by understanding them nicely, which Prabhupada has already done. Let's attend IDC course. Let's attend Bhakti Shastri. Let's attend Bhakti Vaibhav. Those of us who are intellectually inclined, let's hear more and more classes. Let's understand these concepts so well that we can teach others nicely. So Prabhuji was telling that just like in a dark room at night, mirror is there, you are there. Can you see yourself? You want to see yourself only, yes, self-realization, but you need light. Similarly, you cannot talk about real self-realization without God realization. Therefore, let's talk about whether God exists or not. Anyway, so at that time, the soul can see himself very clearly, like in the mirror. And this is self-realization, Kapil ji is telling. And 25.18, very nice point. He is telling, अच्छा तो ये state कैसे achieve होता है? You are getting the flow? So he is telling, how is this state achieved? So he is telling this state is achieved by practice of knowledge and renunciation in devotional service. How is that position achieved? By practice of knowledge and ज्ञान वैराग्य, पर लिखा होगा श्लोक में, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना. With that we achieve that state. One sees everything in right perspective. Paripashyati. You don't only see now, but you see things in right perspective. जैसे जब प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, न्यूयॉर्क का स्काई लाइन था, कुछ तो था, अमेरिका कोई सिटी होगा जहां बहुत बड़ा ऐसा मैनहट्टन और व्हाटएवर, दे वर एबल टू सी द बिग स्काई लाइन ऑफ स्काई स्क्रेपर्स. एंड प्रभुपाद देख रहे थे कि एक दो डिसाइपल ना पूरा एकदम उससे चकाचौंध हो रहे हैं, उससे वो हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मेस्मराइज हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. एंड देन वन वाज सेइंग, प्रभुपाद सी हाउ अमेजिंग. प्रभुपाद सेड, देयर इज चिल्ड्रन डिज्नीलैंड, दिस इज एडल्ट डिज्नीलैंड. मतलब ऑफ नो रियल वैल्यू, खाली टाइम पास, मजा कर रहे, कुछ नहीं कर रहे वहां. वो क्या रहा है, हाथ में क्या आ रहा है? कुछ बच्चों को वो डिज्नीलैंड में मजा आ रहा है, बड़ों को ये डिज्नीलैंड में मजा आ रहा है. जैसे वी वर डिस्कसिंग सम टाइम, राइट, चिल्ड्रन प्ले विद बलून्स, स्मॉल कार, टॉय, टूट जाता है तो रोने लगते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट्स देयर लाइफ. और अभी आपको बलून दूंगा, फट जाएगा तो रोने लगोगे, आओ आओ. नो, बिकॉज यू नो लाइफ इज अबव दैट एंड लाइफ इज बियॉन्ड दैट. कॉन्शियसनेस इवॉल्व कर गया है. सिमिलरली अभी कहाँ कॉन्शियसनेस अटक गया है? रोटी कपड़ा मकान गाड़ी बैंक बैलेंस, इसमें अटका हुआ है. पर उससे भी ऊपर कॉन्शियसनेस वाले की दृष्टि से देखेंगे, लगे कहाँ अटका हुआ है ये आदमी, करना है ये. पर यहाँ अच्छा हो गया तो सोच रहा है यस अभी मेरे को लाइफ में सब कुछ मिल गया. खराब हो गया तो लगा गए, रोने लगे. ये गलत है. इसलिए देखो तुरंत ये सब चीज को हैप्पीनेस डिस्ट्रेस से रिलेट करते हैं, बिकॉज दैट इज इट्स नॉट दैट वी शुड नॉट हैव दीज थिंग्स, इट्स अबाउट आर वी डिटैच्ड फ्रॉम दीज थिंग्स. एंड द टेस्ट ऑफ डिटैचमेंट इज व्हाट? आ गया तो कितना आसमान में चढ़ गए, चला गया तो कितना कब्र में घुस गए. That's why wherever you will see in Bhagavad Gita, Bhagavatam, wherever the transcendence is being talked about, immediately happiness and distress की बात आ जाती है, because that is how you can test it. खाली बोलने से क्या होता है, अरे मैं तो ब्रह्मभूत हूँ,
और उसका बेचारा एक पैसा चला गया तो अब उसके पीछे पागल हो रहा है। जैसे रामानुजाचार्य, इफ यू रिमेंबर दिस एग्जांपल, रामानुजाचार्य हैड सम ब्रह्मचारी डिसाइपल्स. They were living in the ashram with Ramanujacharya, and he has a grahastha disciple named Dhanudas. हाँ? तो ब्रह्मचारी लोग को क्या लगता था कि अरे वाई धनुर्दास इज सो फेवरेट ऑफ रामानुजाचार्य, वो गृहस्थ है, विषयी आदमी है, सेंस ग्रेटिफायर है, वाइफ के साथ रहता है. हम सब देखो ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, इतना साधना करते हैं, ये सब करते हैं. रामानुजाचार्य को जब पता चला कि ब्रह्मचारी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ कंसेप्शन फॉर दैट गृहस्था, उन्होंने एक काम किया. एक रात को ये ब्रह्मचारी लोग, दे हैड वन कॉपिन एंड देन वन धोती कुर्ता व्हाटएवर. तो रामानुजाचार्य ने रात में क्या किया ना, इनका पूरा इधर उधर कर दिया, कुछ छुपा दिया, कुछ इधर उधर कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, जिसने यहाँ डाला था उसे कहीं और कर दिया. एंड ही जस्ट वांटेड टू वेट एंड वॉच नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंस. जब ये लोग सुबह उठे और नहा धो के रेडी होना था, आप सब एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा चालू, गाली गलौज करना, जो अरे मेरा तुमने यहाँ कहाँ रख दिया, अरे मेरा कहाँ गया, अरे मेरा वही एक था, ये वो एंड देयर ऑल अटैचमेंट टू देयर लिटिल पोजेशंस केम आउट वेरी ग्राफिकली. एंड देन धनुर्दास टोल्ड देम, रामानुजाचार्य टोल्ड देम, एक काम करो, धनुर्दास के पास जाओ रात में, और उसका जो भी प्रॉपर्टी है, उसकी वाइफ का जो भी ज्वेलरी वगैरह है, वो सब लेके आ जाओ. उसको पता नहीं चलना चाहिए. सो दे डिड दिस. दे सेड अब मजा आएगा, अब देखते हैं, अब उसका भी पोल खुलेगी, विल कम टू नो कितने पानी में हो. तो गए ये लोग, तो व्हेन ही वेंट, धनुदास एंड हिज वाइफ वर स्लीपिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड दीस पीपल दे लुक फ्रॉम द विंडो एंड दे सॉ कि अरे धनुदास की वाइफ ना बहुत सारा गोल्ड ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है. So they went and they started taking. अब देखो वाइफ, अब कोई वाइफ का ज्वेलरी निकालेगा तो वाइफ के घोड़ा बेच के सोएगी क्या? आदमी घोड़ा बेच के सोता है. गर्ल्स नॉर्मली इतना घोड़ा बेच के सोने का भगवान ने उनको नहीं दिया है. दे हैव टू बी अलर्ट ऑलवेज, क्या चल रहा है लाइफ में. तो तुरंत उनको पता चल गया ये लोग आए हैं, और ये देख रही है कि अरे ये तो गुरु महाराज के डिसाइपल्स हैं, और ये लोग ये ले रहे हैं, मतलब जरूर सेंटर को चाहिए होगा, ऐसा सोच रहे हैं. वो सोच रही है. तो क्या किया उन्होंने, ऐसे एक साइड से लेटी हुई थी, तो शी चेंज हर साइड, थिंकिंग चलो दूसरा भी ले लो, गुरु महाराज को पैसे की जरूरत होगी, हम तो सरेंडर डिसाइपल्स हैं. अब वो जैसे ही चेंज की, डिसाइपल लोग डर के आ रहे, तो उड़ के भागे, आधा लेके भाग गए. अभी जब धनुदास को पता चला कि ऐसा हुआ, तो बहुत डांटा धनुदास ने अपनी वाइफ को. बोला अरे तुमको हिलने की क्या जरूरत थी, ले जाने देते उनको, और भी हिलने की वजह से अब वो बीच में अटक गया. एंड दीज डिसाइपल्स वर वाचिंग दिस. तो व्हेन रामानुजाचार्य आस्क्ड कि बताओ वहां क्या हुआ था, देन दीज डिसाइपल्स वर अशेम्ड. कि दो ही हैज लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, लॉट ऑफ पोजेशंस, लॉट ऑफ एवरीथिंग, बट ही इज कंसीडरिंग ऑल ऑफ दैट टू बी गुरुज प्रॉपर्टी. And you have one kopin, one dhoti, one kurta, and you are fighting for it, thinking that it is yours. So therefore, real test is happiness and distress में क्या होता है. And it's a very big plat, very lofty thing. It's very easy to say. It's a very lofty thing. So this happens, by knowledge and detachment, one practices Krishna consciousness. I just want to quickly just go over this chapter finally, and then 19 to 27, Kapil Dev is talking about supremacy of bhakti over jnana and yoga. Remember first verse he was telling how Krishna consciousness is the topmost yoga system, पर फिर भी भक्ति डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने वहां. Now in this 19 to 27 डायरेक्टली बताएंगे कि कैसी भक्ति is the topmost above even ज्ञान and yoga. He is going to talk about that. In fact, not only that, he says that तुम कोई भी योगा प्रोसेस कर लो, अगर वो भक्ति तुमको नहीं देता है फाइनली, तो वो इनकम्प्लीट है. He is saying this. Perfection in self-realization cannot be attained by any kind of yogi unless he engages in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, for that is the only auspicious path. तो कपिल जी ये बता रहे हैं कि कोई भी योगी हो, उसका लाइफ परफेक्ट ही नहीं होगा जब तक वो अल्टीमेटली कहां नहीं आ जाए, डिवोशनल सर्विस. हम क्या करना चाह रहे हैं, डिवोशनल सर्विस. Therefore Prabhupada used to say this is the means as well as the goal. हमको इसका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको चीपली ले लेते हैं, क्योंकि इतना आसानी से मिल गया है, और इतना बहुत ज्यादा ऐसा नाक पकड़ के इधर एक टैंक पे खड़ा होकर तपस्या वगैरह नहीं है इसमें, तो इससे क्या होगा. लेकिन क्या हुआ है, आपको डायरेक्टली एंड रिजल्ट दे दिया है, तो इसलिए हमको उसका वैल्यू नहीं है. तो वही सुनने के लिए हम डेली रीडिंग हियरिंग करते हैं, इसका वैल्यू अप्रिशिएट करने के लिए. वी आर नॉट रीडिंग हियरिंग डेली भक्ति शास्त्रस टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन और टू कम टू अ कंक्लूजन. नो. ज्ञान योगी also read scriptures. उनके also they have lot of prominence of reading hearing, but their reading hearing is to get knowledge and to arrive at a conclusion. Our reading hearing is to know more about it, to more about Krishna, to convince ourselves, get convinced more and more about what conclusion is being presented. They read to find the conclusion, we read about the conclusion. So there is a difference between our reading hearing and their reading hearing, and our reading hearing is also bhakti, shravanam.
So any yoga process is incomplete if it doesn't culminate in bhakti. And here now he says another nice point. एक्चुअली इतना बढ़िया से स्ट्रक्चर किया है ना अपना प्रेजेंटेशन को लॉर्ड कपिल ने, कि ये इसके बाद ये क्यों बोल रहे हैं, इसके बाद ये क्यों बोल रहे हैं. अभी बोले कि देखो भक्ति नहीं होगा तो कंप्लीट नहीं होगा, अब बता रहे हैं तो भक्ति कैसे मिलेगी. Every learned man knows very well that attachment for material is the greatest entanglement of the spirit soul, but the same attachment when applied to self-realized devotees opens the door of liberation. तो एक साधु से जुड़ जाइए, अटैच हो जाइए. अटैच विद डिटैच्ड. किसके साथ अटैच होना है हमको? जो डिटैच है उसके साथ अटैच हो जाओ. Attach with detach. That is the title of this sloka. So how to get bhakti? By association of devotees. And Prabhupada writes, here it is clearly stated that attachment for one thing is the cause of bondage in conditioned life. And the same attachment, when applied to something else, opens the door of liberation. तो फिर बोल रहे हैं कि साधु से अटैच होना चाहिए. And then Prabhupada is writing, and who is a sadhu? A sadhu is not just an ordinary man with a saffron robe or long beard. A sadhu is described in Bhagavad Gita as one who unflinchingly engages in devotional service. Now, please note, even though one is found not to be following the strict rules and regulations of devotional service, if one simply has unflinching faith in Krishna, the Supreme Person, he is understood to be sadhu. Every right understanding has a wrong understanding. हमको एक नॉलेज को अपने ऊपर कैसे अप्लाई करना है वो देखना है, और दूसरे के ऊपर कैसे अप्लाई करना है वो भी समझना है. तो ये जो बात है कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं भी फॉलो कर रहा हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग फेथ है उसका कृष्णा के अंदर और डिवोशनल सर्विस में, तो उसको साधु मानना है. ये हमको दूसरे के लिए अप्लाई करना. ऐसा नहीं कोई थोड़ा दूसरा कोई भी थोड़ा सा रूल ब्रेक कर दिया, प्रभु जी देखो प्रभु जी कितना बड़ा हिरण्यकश्यप है, प्रभु जी बोलता है डिवोटी है डिवोटी. नहीं. तो ये चीज उस पर अप्लाई करनी. और अपने ऊपर क्या अप्लाई करना है? स्मृति श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिकम विधिम बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते. बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के भक्ति करोगे, केवल समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे. अपने ऊपर वो फॉलो करना है. लेकिन सामने वाला अगर कुछ नहीं, इसलिए आई रियली लाइक दिस स्टेटमेंट. Appreciate others for whatever standards they are able to follow. Regret whatever standards you are not able to follow. अगर हम कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी स्टैंडर्ड हो, about 4 regulative principles, about 4 do's, about chanting in the morning, whatever, we all, that's why we are reading hearing, to understand करना क्या है और हम कहाँ हैं और कैसे जाएंगे वहां. Whatever standards it may be, हम जो भी स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो कर पाते हैं उसके लिए हमको क्या करना है, ये नहीं सोचना है अरे कम से कम जितना कर पा रहे उतना तो अच्छा है ना, शांत रहो. ऐसा नहीं बोलना है अपने आप को. बोलना नहीं यार, और करना है और करना है. रिमेंबर चाणक्य पंडित श्लोका, 3 चीजें से सेटिस्फाइड होना है, 3 चीजों से नहीं होना है. कैसे सब कनेक्टेड है ना, कितना मजेदार है कि नहीं. व्हेन वी हियर शास्त्रास फ्रॉम दोस हु नो लाइक प्रभुपाद, हाउ ऑल शास्त्रास लगता है सब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कर रहे हैं. है ना, हाउ नाइस इट इज. सो अब हम जो भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हमको क्या होना चाहिए? रिग्रेट करना चाहिए. अरे मैं एक भी माला चैंटिंग नहीं करती हूँ, मुझे आज से शुरू करना चाहिए. अरे मैं घर में चाय कॉफी बना के पीती हूँ, मुझे आज से करना चाहिए. अरे हमारे घर में अनियन गार्लिक बनता है, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? नहीं, और ये दिल मांगे मोर. हम जो भी नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए रिग्रेट करना चाहिए. लेकिन सामने वाला अगर कुछ नहीं कर पा रहा है वो नहीं देखना चाहिए. वो जो भी कर पा रहा है बोला अरे वाह आप ये कर रहे हो, वेरी नाइस, प्लीज कंटिन्यू. जितना भी कर पा रहा है वेरी नाइस, लाइक दैट. ठीक है, आई थिंक नाउ वील एंड बिकॉज इट इज 9:10. So just for the understanding, we have come to this shloka, which is shloka number 20. But just to give a quick glimpse so that इसको, क्योंकि अगला टॉपिक पता नहीं यही वाला उठाने वाले हैं कि नहीं व्रज कृष्णा प्रभु, लेकिन जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स कि आगे क्या आने वाला था, जस्ट टेल कि आगे क्या होगा. तो ये 25 चैप्टर में चल रहा है पूरा, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस. और आगे और प्लीज बिलीव मी देयर आर मेनी नाइस इंस्ट्रक्शंस कि एक डिवोटी को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. बिकॉज वी ऑल वांट इंस्ट्रक्शंस ना. मेनी ऑफ अस हु आर इनोसेंट एंड सिंसियर, वी वांट कोई बता दे क्या करना है. प्रभु जी ये करना होता है कि नहीं करना होता है ना. पर वो चीजें हमको पहले डिटेल्स से ज्यादा पहले प्रिंसिपल पे अप्लाई करनी है. See, there are 2 things in Krishna consciousness, principles and details. हाँ? अभी एकादशी के दिन टमाटर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, बताइए. ये प्रिंसिपल है कि डिटेल?
डिटेल है। इसका मतलब ये नहीं कि जो इसको जानता है और फॉलो कर रहा है वो बेकार का आदमी, नहीं नहीं, जितना डिटेल जानो और जितना फॉलो करो अच्छी बात है, पर पहले मेन जो इंक्वायरीज है ना वो प्रिंसिपल्स के अराउंड होनी चाहिए। मेन इंक्वायरीज प्रिंसिपल्स के अराउंड होनी चाहिए। और उसके बाद जितना हमको वो पता चल गया, फिर डिटेल्स में हम जितना जान सकते हैं उतना जान सकते हैं। तो इन दिस, सो इन प्रिंसिपल्स वी शुड बी वेरी ईगर टू नो, अरे क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने चाहिए, लाइफ कैसे लीड करना चाहिए, अगर कोई खराब काम कर रहा है तो उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए, दीज आर ऑल प्रिंसिपल्स। और ये ना पूरा होलसेल फ्रॉम चैप्टर 25 to 32 कपिल पूरा खुल के बता रहे हैं, है ना, कि एक डिवोटी को क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए और क्या प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। सो 25 में वो है, आई मीन सब में ही है। फिर 26 में ना ही इज टॉकिंग अबाउट सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर, जीव के बारे में, पुरुष के बारे में, प्रकृति के बारे में, ये सब बता रहे हैं। और 24 मटेरियल एलिमेंट्स और वापस क्रिएशन, वापस वो सब हो रहा है 24 मटेरियल एलिमेंट्स के बारे में। एंड देन फिर चैप्टर 27 आता है। इन चैप्टर 27 ही इज टॉकिंग अबाउट मटेरियल नेचर मोर, प्रकृति, अबाउट कैसे जीव अलग अलग तरह का काम करता है, कैसे इंटेंस प्रैक्टिस कर सकता है, कैसे सोल और सुपर सोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ऑल दोस डिटेल्स आर बीइंग मेंशन्ड अबाउट मटेरियल नेचर। एंड देन 28 में अगेन एग्जीक्यूशन और डिवोशनल सर्विस, भक्ति कैसे करनी है उसके बारे में पूरा डिटेल्स है, और उसको थोड़ा सा योगा से कनेक्ट किए हैं कपिल देव। एंड देन अगेन इन 29 अनदर वेरी गुड चैप्टर। अगर आपके पास कम टाइम है और 2 ही चैप्टर पढ़ सकते हो तो 25 एंड 29, बाकी बीच का थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बोरिंग विद इन डबल कोट्स, बट 25 एंड 29 ये करिए, ये मत करिए, डायरेक्ट लिस्ट। और फिर 29 में वापस हम लोग परपोर्ट पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, और वापस वहां ऐसे होलसेल प्रपात ने बताया। और वहां पे एक इसी 29 चैप्टर में एक बहुत बढ़िया चीज आती है। ये बढ़िया चीज आती है कि कैसे पूरा हायरार्की है लिविंग एंटिटीज का, डायरेक्ट राइट फ्रॉम डेड मैटर। डेड मैटर के ऊपर होता है जो लिविंग इमूवेबल एंटिटीज होते हैं, लिविंग इमूवेबल एंटिटीज के ऊपर होते हैं जिनका और ज्यादा लाइफ सिम्टम्स होता है, उससे ऊपर होते हैं जिनका डेवलप कॉन्शियसनेस होता है, उससे ऊपर होते हैं जो अब सेंस परसेप्शन कर सकते हैं। सेंस परसेप्शन में भी अलग अलग कैटेगरी है। जो लोग टच सेंसेशन फील कर सकते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, जैसे प्लांट, प्लांट टच सेंसेशन फील कर सकता है। उससे कौन ऊपर होता है? जो लोग टेस्ट का सेंसेशन फील कर सकते हैं, जीव जंतु और लिविंग एंटिटीज। उससे ऊपर कौन होता है? जो स्मेल फील कर सकते हैं, वो उससे ऊपर होता है। यू सी व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम। मतलब किसी को हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी भी करना है, वी हैव दैट अरुधा माता जी ना, वो क्या है, सेन होजे नहीं, बोए क्या टेंपल है वो, देयर इज वन अरुधा माता जी हु हैज होम स्कूल 2 चिल्ड्रन, शी हैज रिटन बुक्स ऑन हाउ थ्रू श्रीमद् भागवतम यू कैन टीच हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी मैथ साइंस टू चिल्ड्रन। तो वो सब भी है भागवतम में। फिर उसके ऊपर कौन है लिविंग एंटिटीज होते हैं जो सुन सकते हैं। उसके ऊपर कौन से लिविंग एंटिटीज हैं जो इस रूप को इस रूप से अलग अलग समझ सकते हैं। उसके ऊपर कौन से लिविंग एंटिटीज हैं? दोज हु हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, अपर जॉ लोअर जॉ, वो उससे ऊपर लिविंग एंटिटीज है। उससे ऊपर लिविंग एंटिटीज कौन है? जो बहुत सारे पैर होते हैं और चल सकते हैं। उससे ऊपर लिविंग एंटिटीज कौन है? जिनके 4 पैर से जो चलते हैं। उससे ऊपर लिविंग एंटिटीज कौन है? जो 2 पैर से चलते हैं। हाथ खड़ा करिए। अब वो जो 4 पैर 2 पैर से चलते हैं हम सब, अब उसका कैटेगरी है फर्दर। उसमें सबसे नीचे कौन है? जो वर्णाश्रम का पालन ही नहीं करते। उससे ऊपर कौन है? जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं। उससे ऊपर कौन है? ब्राह्मणास। अब ब्राह्मणास का भी कैटेगरी है। सबसे खराब ब्राह्मण कौन? जो वेद को जानता है। मतलब यहां से शुरू हो रहा है ना, लेवल भी बढ़ता जा रहा है ना अभी, तो उसका सबसे खराब ये है। जो वेद को जानता है वो सबसे खराब ब्राह्मण। उससे ऊपर ब्राह्मण कौन? जो उस, उसके मीनिंग को जानता है। दीज आर श्लोकास मेंशन इन भागवतम इन चैप्टर 29। जो उसके मीनिंग को जानता है वो उससे ऊपर का ब्राह्मण। उससे ऊपर का ब्राह्मण कौन है? जो दूसरे के डाउट को क्लेरिफाई कर सकता है। उससे ऊपर का ब्राह्मण कौन है? जो अपना ड्यूटी भी फॉलो कर रहा है। ब्राह्मणास हु आल्सो फॉलो हिज ड्यूटी, खाली बोल नहीं रहा है, बोल वचन खुद भी कर रहा है, वो उससे ऊपर है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उससे ऊपर कौन है? जो लिबरेटेड पर्सन है। और लिबरेटेड पर्संस में से सबसे बेस्ट कौन है? प्योर डिवोटी, जो 24/7 कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज्ड है। कपिल देव स्टडी, सोचो कहां से चल गया। और हम लोग पता है कहां है? हम लोग पता नहीं कहीं होंगे, लेकिन यहां आने का अपने पास सारा फैसिलिटी अवेलेबल है यहां आने का। Prabhupada says one who is trying to be a pure devotee is also a pure devotee. That is the beauty of Krishna consciousness. तो ये मेरे को चार्ट बहुत अच्छा लगा। मे बी whoever हम लोग भेज, आई मीन जस्ट सेंड मैसेज, वी कैन सेंड व्हाट्सएप पिक्चर ऑफ ऑल दीज।
तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट में ये था कि कपिल देव बोल रहे थे कि सबको इक्वल विजन से देखना चाहिए, लेकिन इक्वल विजन मतलब ये नहीं कि सब एक बराबर है. Therefore he tells this whole details. First he tells that everybody we should see equally, and then Prabhupada gives that example that when you see a tiger and a cat equally, it does not mean you embrace a cat, but you embrace a tiger also, though you see both of them equally. ये प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में. And then Kapil Dev says this whole thing कि नहीं नहीं discriminate भी करना चाहिए, so that you know किससे associate करना है. And then chapter 30 पता है क्या क्या बता रहे हैं कपिल देव इसमें? एक मटरलिस्ट कैसा होता है. ऑटोबायोग्राफी ना ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी ऑफ अ मटरलिस्ट. चैप्टर 30 जिसको अपने दिल पे एरो लेने हैं, ये तो मुझे चुभा, ये तो मुझे चुभा, अरे ये तो मेरे बारे में बता रहे हैं. 30 चैप्टर पढ़ने का, कि क्या होता है एक मटरलिस्ट, और जितना आपसे मैच करे आप समझो अच्छा ये सब नहीं करना है अगली बार से. तो ही टॉक्स अबाउट लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मटरलिस्ट. फिर बताता है कि इसके बाद क्या होगा, इसका पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस, इसके बाद क्या होगा. और पता है फिर चैप्टर 31 में क्या आता है, जब एक सोल, एक माँ के गर्भ में एक बच्चा कैसे आता है, दैट इज इन दिस चैप्टर 31. और वो एक पहले दिन से ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 9th मंथ तक क्या क्या होता है वो यहाँ है चैप्टर 31 में. और उसके अनुसार 7th मंथ में कॉन्शियसनेस तो पहले दिन से आ जाता है, परसेप्शन 7th मंथ में आ जाता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो सोल है, पर परसेप्शन 7th मंथ से आ जाता है. तो जीवास ग्रोथ और सफरिंग, कि कितना बेचारा परेशान हो रहा होता है वुम्ब के अंदर, और कैसे लॉर्ड को बोल रहा होता है अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बस एक बार और बाहर निकाल दो, इस बार अच्छे से भक्ति करेंगे जैसे दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. बार बार एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में, कॉकरोच माँ के गर्भ में. अब हर एक का गर्भ नहीं होता, अलग अलग होता है, 5 तरह के होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर. सो सफरिंग आउट. देन उसके बाद जैसे ही बाहर निकला वो रो रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है. अब लोग उसको एसी एसी ऑन कर रहे हैं, बोल रहे गर्मी लग रही होगी, कोई समझ नहीं पा रहा है. और भागवतम डिस्क्राइब्स हाउ इमीडिएटली पहले तो ये डिस्क्राइब्स के अंदर कितना बेचारा परेशानी में है. सोचो ऐसे करके एकदम हिल नहीं पा रहा है, डुल नहीं पा रहा है, सारा सब म्यूकस यूकस सब रो रहा है एकदम. तभी तो 4 जो प्रॉब्लम्स बोलते हैं उसमें बर्थ भी है. हम सब तो हैप्पी बर्थडे करके खुश हो जाते हैं, बर्थ को ग्लोरीफाई करते हैं. शास्त्रों के हिसाब से बर्थ ग्लोरीफाइड नहीं है, कंडीशन सोल का. आचार्य उसका इन लोग का है, अवतार लोग का है, कंडीशन का कुछ नहीं. इससे पहले जमाने में किसी को सनातन धर्म की संस्कृति के हिसाब से, वैदिक संस्कृति के हिसाब से बर्थडे किसी को पता भी नहीं होता था. हाँ कोई तो गर्मी का मौसम था, हो गया 20-30 साल पहले, ऐसा था. ऐसे लोग होता है. आप देखो, आप ग्रैंडफादर या उससे ऊपर जाओगे, राइट. बट बिकॉज बर्थडे देयर इज नथिंग ग्लोरियस अबाउट इट. इट्स वन ऑफ द 4 सफरिंग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि. नए लोग को जब बोलते हैं तो जन्म हटा के मृत्यु जरा व्याधि पे फोकस कर देते हैं हम लोग, क्योंकि फिर ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जन्म कैसे सफरिंग है भाई. एनीवे, तो इफेक्ट फिर बता रहे हैं कि कैसे बाहर निकलते ही बेचारा परेशान, इधर से कीड़ा काट रहा है, इधर से ये हो रहा है, चाहिए कुछ और, रोता है क्योंकि एक ही लैंग्वेज आता है रोने का, लोग कुछ और कर रहे हैं, परेशान है. इमेजिन करो आप कितना परेशान होता होगा एक छोटा बच्चा. और फिर इफेक्ट्स ऑफ बैड एसोसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग बर्थ एंड डेथ, ये सब बता रहे हैं. देखो ऐसा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फर्स्ट नाइट को क्या हो जाता है, 5th नाइट को क्या होता है, 7th मंथ कॉन्शियसनेस, मतलब एबल टू परसीव. एंड देन 32nd चैप्टर में बता रहे हैं कि कैसे अगर फ्रूटिव एक्टिविटीज में फंस जाएंगे तो क्या होगा. अटैच्ड वर्कर्स कौन होते हैं, डिटैच्ड वर्कर्स कौन होते हैं, एंड ऑल दैट. एंड ही क्रिटिसाइजेस सकाम कर्मा एंड अदर गोल्स अचीव्ड बाय भक्ति. वापस भक्ति की सुपीरियरिटी बता रहे होते हैं, एंड ऑल दैट. तो ये कहां तक था, 32. सो फ्रॉम 25 to 32, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 8 चैप्टर. ना ना वही मिस्टेक सब करते हैं. 32 - 25 7 गलत है. बच्चे लोग मैथ में वही मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं तो चुपचाप काउंट कर लेता हूँ, मिस्टेक ही नहीं होता. क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो जाता है ना, 25 भी इंक्लूडेड है, 32 भी इंक्लूडेड है. बच्चे लोग 32 - 25 कर देते, 7 आंसर लिख देते हैं, रॉन्ग आ जाता है. 8 चैप्टर्स. तो 8 चैप्टर जो है ना बहुत बढ़िया है, प्लीज पढ़िए. अगर आपको स्किप करना है कुछ तो आप कर सकते हो, 26, 7, 8 अगर स्किप करना है तो कर सकते हो अगर कम टाइम है, पर 25, 29 तो बहुत जरूरी है. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. क्वेश्चंस. यस प्रभु. Very good question. Unflinching faith in Krishna means many things. Number 1, Krishna is the supreme personality of Godhead. Period. He is the supreme controller, he is the supreme enjoyer, and he is the supreme owner. I should have no doubt that there is anything which is beyond his control. I should have no doubt
that every enjoyment is meant for him. And I should have no doubt that he is the owner of everything. Number one, that he is the supreme CEO. Number two, that the perfection of life is to worship him and to serve him. संबंध अभिधेय प्रयोजन. संबंध means who am I, who is Krishna. तो मैंने who is Krishna वाला बताया. अभिधेय, that the best thing to do, is to worship him, and the goal is to keep loving and serving him. Second, and just like Chaitanya Charitamrita says, what is that? Shraddha. Somebody knows that shloka? Shraddha sabda sarvakrita hoye. What is that shloka? हाँ भाई गोविंद प्रभु, yeah, speak loudly. श्रद्धा शब्दे विश्वासे करी सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण सेवा सर्व कर्म कृत हुए. कृष्ण भक्ति सर्व कर्म. कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हुए. Matlab, this is another aspect of faith. What does that faith mean? This is actually the definition, that if I am worshipping and serving Krishna, then everything else is happening. We should have that faith. Now, doesn't mean we don't go to office. वो हमने इसलिए मैं बार-बार वहां स्टार लगा देता हूं, because it's important to understand these things proper. Every right understanding has a wrong understanding, and therefore there is confusion in society, in devotee society also. So that is faith, Prabhu. And also this thing which we said, I am going to my job and earning money not for happiness. That will not give me happiness. Disgusted with material enjoyment. I have firm faith that there is no happiness in this material world outside of Krishna. The moment I connect to Krishna, this world becomes Vaikuntha. Vishwam Purna Sukhayate. Right? So to have firm faith in this, to have firm faith in Prabhupada, whatever Prabhupada has said, that is, यही है बस. और कहीं हमको ढूंढना ही नहीं है. And Prabhupada writes in so many purports about hearing from Mayavadis. ये वही मैं बता रहा हूँ, ये सब purports में ना वो सब भी आएगा कि how when we hear from here and there, how देखने में वो सेम लगेगा. मायावादी भी श्रीमद् भागवतम कथा करेगा, पर कैसे वो विष से घुला हुआ है. डीटीज के बारे में बता रहे हैं वही 25-29 चैप्टर में, कि कैसे हमको डीटी से अटैच होना चाहिए, कैसे फिर डीटी आपसे बात कर सकती है, एंड ऑल दैट. और कैसे मायावादी भी डीटी वर्शिप करते हैं, पर वो क्या सोचते हैं, वो डीटी को एक लैडर का एक स्टेप जैसा लेते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो डीटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सब भी प्रभुपाद हाईलाइट कर रहे हैं. डज दैट आंसर द क्वेश्चन प्रभु? या. एंड वी शुड हैव कन्विक्शन, वी शुड बी कन्विंस्ड दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस. अभी जो कपिल देव ने लास्ट स्टेटमेंट बोला कि कोई भी योगा प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट लीडिंग टू भक्ति. एंड थिंग्स लाइक जब प्रभुपाद का संन्यास इनिशिएशन हो रहा था तो सारे रिचुअल्स हो रहे थे, प्रभुपाद ने उसको नहीं रोका, वो होने चाहिए रिचुअल्स. फिर प्रभुपाद ने बोला प्लीज स्टार्ट हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग. To have firm faith that Hare Krishna Mahamantra is a culmination of all yajna dana tap. To have this faith that chanting, to have the faith that chanting is a युग dharma, 99% of spiritual advancement takes place by chanting. हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन chanting हरे कृष्णा नहीं कर रहे हैं, we are missing the bus. अगर अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये सब बातें, इसको एकदम बैठा लेना अंदर. This is firm faith and श्रद्धा. Any other quick question? Yes, Prabhu. Okay. How do we differentiate between sense gratification and materialistic enjoyment versus, अच्छा, sense gratification versus materialistic enjoyment in Krishna conscious atmosphere, जो स्वयंभुवा मनु के लिए था. See, if you remember, once we had heard that it is not the act which is a problem. It is when you register it is the problem. जैसे we were talking about wish and विषय. कैवल्यम नरकायते तिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पपतली प्रोत्खादम स्त्रायते. दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पपतली. The snakes are dangerous. Why? Because they have poison in them. If I take out the poison, are they dangerous anymore? They are playthings in the hands of a child, right? So what is creating problem? Snake or the poison in the snake? Similarly, what is the problem? Senses, sense objects, or the poison in them? And sense object में poison नहीं है, poison in senses. And what is that poison we discussed? Wish, enjoying mentality. So now, when we say that a great soul or a pure devotee is enjoying materialistic enjoyment in the atmosphere of Krishna consciousness, what it means is, as a part of his daily routine, he is doing everything. But he is not seeking happiness there. He is not doing it for his own enjoyment. He is doing as a part of his duty. अगर मैं राजा हूं, मेरा ड्यूटी है झोपड़ी में रहने का कि महल में रहने का? मेरे पास 1000 नौकर होंगे कि सब काम मैं खुद अकेले करूंगा? क्योंकि वो मेरा जो सिचुएशन है उसका नीड है. जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, during my PhD I spent some time very closely with some IAS officers and I saw कि भाई these things ना require a kind of a temperament. इसलिए जॉब में ना वरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
किसी का वरना नहीं बोलेगा मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, एक दिन में या तो सुसाइड कर लेगा या बाहर आ जाएगा, लोग धक्का मार के निकाल देंगे। टेम्परामेंट पता क्या होना होगा आईएएस ऑफिसर का? अंदर से वो बेचारा हम्बल है, अगर मान लो डिवोटी है, मान लो डिवोटी आईएएस ऑफिसर है, फिर भी उसको बैग जो है ना वो खुद नहीं उठा के जाना चाहिए। वो 4-5 लोग उसका बैग उठा के जाएंगे। पानी ले रहा है तो उससे बोलेगा पानी देना। पर एक डिवोटी के लिए नेचुरल नहीं आता है टिपिकली। या अगर कोई वैसा टेम्परामेंट वाला सॉफ्ट एकदम हम्बल हो, वो आईएएस ऑफिसर करके रह ही नहीं पाएगा वो। तो आईएएस ऑफिसर, पोजीशन ऑफ आईएएस ऑफिसर डिमांड्स that you should have 10 people around you, and instead of you doing the work, you tell them. That is how your office will function properly, right? Similarly, imagine king को क्या डिमांड होता होगा, like kingliness, हजारों नौकर होने चाहिए आसपास, और मैं जमीन पे नहीं सोना चाहिए, मेरे को इतना ऊंचा बेड पे सोना चाहिए क्योंकि बाकी लोग जमीन पे सो रहे हैं, राइट? Even though he is doing all that, he's not touched with that because he's not looking for enjoyment there. He's just doing it as a part of natural functioning of this body and this current situation of the body, but he is completely engaged in Krishna consciousness. Because he knows यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, and he knows मैं जो भी कर रहा हूँ वो कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहा हूँ. Then he is absorbed in the Krishna conscious atmosphere and he is chanting and reading and hearing every day. जो बोला है ये हम लोग डे ऐड कर रहे हैं, लिखा श्लोक में है. Then it is Krishna conscious atmosphere. Does that clarify, Prabhu, to some extent? Yeah. Yes, Prabhu. क्योंकि सेल्फ कंट्रोल हैज अ टेंडेंसी क्या, आई एम स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ. हाँ, अरे नहीं पिज्जा रखो, तुम कुछ भी रखो मेरे सामने, केक रखोगे नहीं खाऊंगा. अब वाइफ ने बड़े प्यार से केक बनाया, सेल्फ कंट्रोल दिखा रहे हैं हम, अरे ऐसा करके हटा दिया केक, सेल्फ कंट्रोल है मेरा. तो इनसेंसिटिव हो सकता है व्यक्ति, पर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रिक्ट विद वन सेल्फ, लीनियर विद अदर्स. एक बार, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट एक बार देयर वाज वन सीनियर डिवोटी हु इन चतुर्मास फॉलोड अ vow of not eating sweets. So when some devotees were serving, he was not taking. And then there was another senior spiritual master, his own spiritual master. He said, no, no, you take. And then he took. Because order of spiritual master या higher principle, it's always about higher principle and lower. अब सोचो उन्हें वाव लिया, उसके चक्कर में वहां पे अननेसेसरी एक वैष्णव को डिस्प्लीज कर देते, या गुरु की बात नहीं मानते, तो हो गया he is attached to a particular rule and regulation. So self control अगर केवल हम उस पे फोकस करेंगे as the highest principle, then we may tend to become insensitive to others. अरे कोई बहुत प्यार से लाया, आप तो अपना सेल्फ कंट्रोल दिखा रहे हो, ठीक है लेकर रख दो ना, वहां अंदर अंदर खाएंगे, पर सामने दिखाना है कि नहीं नहीं मैं तो, मेरा वाव है, नहीं मैंने चीनी छोड़ दिया, नहीं खा रहा हूं. किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए सेल्फ कंट्रोल. इट इज सेड सेल्फ कंट्रोल, साधना, ऑल दीज थिंग्स आर सपोज्ड टू बी वेरी प्राइवेट. हम लोग क्या करते हैं, एट द स्लाइटेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी वांट ग्लोरिफिकेशन ना. अच्छा, अच्छा प्रभु जी देखो बिना चैंटिंग के ऑफिस नहीं जाते हैं, इसको पता भी नहीं चलना चाहिए. वॉट एवर इट इज, राइट? पर हम लोग वी आर, ऑफ कोर्स आफ्टर सम इयर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी डोंट अवरसेल्व्स टेल, बट कहीं से अगर कोई सुन ले, कोई बोल दे, तो थोड़ा अंदर में अच्छा लगता है, हाँ मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं. बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो. लेकिन होना क्या चाहिए, बाहर हम क्या कर रहे हैं अंदर में उतना किसी को पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बाहर से तो वी आर एटलीस्ट अप्रिशिएटिंग एवरीबॉडी, लविंग एवरीबॉडी, रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी. तो वो टेंडेंसी हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग इट्स नेसेसरली लाइक दैट, आई एम सेइंग देयर कुड बी अ टेंडेंसी that one may become insensitive. One should not. Okay, one last question. Any Mataji's, any question? Okay. Yes, Prabhu. Very good. So in Channapatna Yatra, we all saw Kailash drama. All those of us who went to Channapatna Yatra, we all saw Kailash drama. अगर आपने नहीं देखा तो आप किसी डिवोटी से कांटेक्ट करके कैलाश ड्रामा देखो, तो यू विल सी. मैं एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज अ करेक्ट ड्यूटी वर्सेस व्हाट इज अ सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी. Prabhupada in 7th chapter writes, and as carrying a huge loads of burden of self created duties, ऐसा करके लिखते हैं Prabhupada. Example, if I am a 28-year-old man and I have a wife and I have a 5-year-old son, and I am not taking care of my son in the name of doing something else or whatever, then this is wrong, because I'm not doing my duty. Because this is my duty. If I'm 28 years old, 30 years old, and I have 5-year-old, 6-year-old son, then to take care of that, who else in the whole world Krishna has appointed? Whom? Grandparents, parents, Krishna has appointed. So if I'm not doing that, I'm not doing my duty. But if I am 75-year-old and my grandchildren are small, and natural thinking is what? Ki my children are nalayak, they are not taking care of them properly, let me take care of them nicely.
And instead of focusing on Krishna, my whole focus is on that these people, my son and daughter-in-law, they are not doing their duties properly. Let me bridge, let me fill in the gap. This is self-created duty. Based on which phase of life you are in, mainly. Or another example, I'm doing my best. Still something is not happening. Now, how much out of the way will you go to fix that? If you're going too much out of the way to fix something, compromising your sadhana, compromising your chanting, compromising your consciousness on Krishna, then self-created duty. So the whole thing is about how much is too much and how less is too less. So two things I said. One is Shastras tell based on phase of life, there are some prescribed duties. For a student, what is the duty? For a young married people, what is the duty? Live family life nicely, take care of all family duties, responsibilities. For those who are 52, इसलिए वो discuss किया ना, earn and grow, engage and all that. So ये एक answer है question का. दूसरा answer क्या है? About what was the second thing I said? That okay, it may be your duty, but in that also, I want to make my children devotees. They are not becoming devotees. Now, how much out of the way can I go for that now? I have to learn that I am not Krishna. So beyond the point, I have to give up. Learn to let go. Otherwise, if I'm holding on still, even though that may be my duty to begin with, we have to draw a line somewhere. That is spoiling my Krishna consciousness, spoiling my own chanting and all that peace of mind. Okay, one last question, Mataji. Yeah. Yeah. So see, in Kali Yuga right now, the way we are all practicing Krishna consciousness, or the way we all have come to Krishna consciousness, is more of an emergency situation. Ideally, the education system itself, the Gurukul में क्या होता था? It used to bring out the best from within. That is the meaning of education. Greek or Latin educare means to bring out the best from within. तो जो 0 to 25 का होता था ना, उसको सब तरह का ट्रेनिंग मिलता था. ब्रह्मचारी ट्रेनिंग भी मिलेगा उसको, डिपेंडिंग ऑन वेदर ही इज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शास्त्रों का पढ़ने का ट्रेनिंग मिलेगा उसको, अदर साइड आर्ट्स का ट्रेनिंग मिलेगा, वीर रस, श्रृंगार रस, ये सब का भी ट्रेनिंग मिलेगा. दे शुड आल्सो लर्न टू बी एबल टू लर्न एंड रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट आर्ट, म्यूजिक, ये सब का भी ट्रेनिंग होता था. तो जो हम ट्रेडिशनली जब बोलते हैं ना 0 to 25 अर्न एंड ग्रो, दैट वाज नॉट द करंट वे वी सी ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हैपनिंग. Because ये जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग है, this is more like an emergency scenario right now. But now all over ISKCON, all over the world, some corrections are being done. What are those corrections? That if somebody has not decided, you have to expose him to both. That is the right training. Now, which leader is doing what, I cannot comment. I can only give one. We can stop कर दीजिए, काम खत्म हो, क्लास ओवर हो गया. I can only